ready to soar into the clouds. Today, we have Shayan Devkar with us, the speaker of the session. Let me give a short glimpse about him. He is two times Red Hat certified SIS finalist and a industry expert currently working as a DevOps engineer at Constance AI. So now I would like to invite Shayan to introduce himself and further continue the session. Thank you so much, Rishabh. Hello, guys. Hello, everyone. I hope you are doing well. Like, it's pretty having good weekends, like Saturday, Sunday. So, how was your paper? I think most of them have was having paper. सबके papers हैं. तो कैसे गए? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे, मज़ा आएगा. फिर हम लोग हिसाब से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को. आई होप सब मज़े करने वाले हैं. पार्टी चलने वाली है. Like it's fab and it's weekend. So cool. So let me just tell me myself. I'm Shayan Devkar and I'm being a tour credit certified person. So like I have been in the industry from last couple of years, doing multiple internships and working with the companies on the real-time projects also. Apart from this, I have worked with for more than 10 to 12 companies in the industry and helping them in the troubleshooting parts too. And let's have a quick connection with you. So I'm just dropping my LinkedIn account, and you all can just drop your LinkedIn account in the chat so everyone can join with each other. So it will be a great connections and having everyone is knowing each other. Okay, so Rishabh, can you just help me? Like, is my screen visible? Yeah, your screen is visible. Alright, so everyone can just connect me on LinkedIn, and if you want to know about more about me, you can just search about me on Google. Like I'm everywhere. I'm on YouTube, I'm on LinkedIn, I'm on Twitter. So like this is about me, and you can just have a connection request or me on the LinkedIn also. And I've been also on the YouTube. I used to teach students like into different skills. Like on the cloud we have we will go through this journey, हम लोग journey में देखेंगे, and it will be a quite interesting and good with you all. You can search me and you can just see on the Twitter, LinkedIn, all this part. And you can also search and on the LinkedIn. I will be there with you, and if you have any quick queries for the further, let me just quickly drop my LinkedIn into the chat section. Just a minute. Guys, please turn on your cameras. Let's make this virtual journey a bit more exciting. Please turn on your cameras, those who are comfortable. All right. That will Let's. I be think. helping us I in think. Yeah. doing the session more interactively. That's great. Like Ajay has shared his LinkedIn. It's pretty good. Like well done, Ajay. सब अपनी अपनी लिंक्डइन अकाउंट शेयर कर दो, फिर मज़ा आएगा एक दूसरे जुड़ने में. फिर हम लोग I think just a minute, there's a glitch from my side. Okay, I've also my drop. Everyone can just get connected with everyone. Let's build the connections over, because connections matters a lot in the industries and we are the working professional. कब कौन काम आ जाए, क्या पता तुम लोग के दोस्त ही कोई एचआर बन जाए और कोई एक बड़ी कंपनी में हो, फिर रेफरल दिला रहे हो एक दूसरे को. यही होता है, मज़े आते हैं कि कोई गूगल के अंदर काम कर रहा है एंड यू आर जस्ट भाई रेफरल दे दे यार, गूगल के अंदर काम करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज पार्ट. एंड हम लोग आज का ये है कि हम लोग क्लाउड के बारे में सीखेंगे जनरली, कि क्लाउड होता क्या है, हम लोग क्लाउड क्यों यूज़ करते हैं, एंड वाई डू वी नीड क्लाउड, एंड एवरी वन बिगेन्स विद द क्लाउड. चलो ठीक है, सबने सुना होगा क्लाउड. ओके, क्लाउड, व्हाट इज़ क्लाउड? किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है क्लाउड के बारे में? लिटिल बिट, आई थिंक जस्ट मे. ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लाउड टोटली. सो कोई बता पाएगा लाइक व्हाट इज़ क्लाउड? एंड किसी को कुछ पता हो तो. क्लाउड मतलब बादल में समझ लेना कि बादल होता है भाई. देखो सिंपल है, क्लाउड क्या होता है,
एक हमारे पास क्लाउड ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे तुम चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। अब मैं रियल टाइम एग्जांपल समझाता है क्लाउड क्या होता है। अब क्लाउड एक ऐसी चीज़ होती है कि बादल क्या करते हैं, पानी को लेता है, मतलब स्टोर करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा करके मतलब बरसात करता है। तो इसी टाइप से सिमिलर होती है चीज़ें क्लाउड के बारे में। तो क्लाउड में होता क्या है, जनरली तुम लोग अपन लोग डे टू डे में गूगल क्लाउड ज़्यादा मतलब अपन क्लाउड ज़्यादा यूज़ करें, नॉट अबाउट गूगल क्लाउड। सबके फ़ोन के अंदर है ना गूगल ड्राइव करके चीज़ होती है। जब जब अपन लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी फ़ोटोज़ रहते हैं हम उसको अपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके रख देते हैं। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार वो हमारा अगर फ़ोन फॉर्मेट भी हो गया तो हमारे पास एज ए बैकअप के ऊपर पड़ा रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप का बैकअप रखते हैं ना, मतलब हम लोग बैकअप करते हैं एवरी एवरी लाइक 2 AM, और हम लोग हमारे अकॉर्डिंगली उसको सेट करते हैं कि कितने बजे बैकअप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी चीज़ों को हम स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली, कि अगर बाय चांस कुछ चीज़ हमारे पास मतलब कुछ हो भी गया है ना, कुछ चेंज हो गया, कुछ डिजास्टर हो गया, कुछ चीज़ सडनली ऐसी हैपन होगी कि हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, तो हमारे डेटा पूरा उड़ जाएगा। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लाउड की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं कि जिससे कि हमारे डेटा को हम हमेशा स्टोर करके रखें, परमानेंटली स्टोर कर सके। इस टाइप की चीज़ें हम लोग मैटर करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जनरली ये आता है कि वाई वी यूज़ क्लाउड, हम लोग क्लाउड क्यों यूज़ करते हैं, है ना। पहले अपने देख लिया व्हाट इज़ क्लाउड हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन दिस अराइजेस कि व्हाई वी आर यूजिंग क्लाउड। क्योंकि देखो इसमें सबसे पहला फीचर क्या होता है कि तुम अपनी गूगल ड्राइव का फोटोज अपलोड कर देते हो, है ना। जैसे एग्जांपल, गूगल ड्राइव के अलावा कुछ भी कर सकते हो। तो अपन लोग क्या करते हैं कि एक ड्राइव रहती है, अपन फोटोज अपलोड कर देते हैं, वीडियोस अपलोड कर देते हैं, डेटा फाइल अपलोड कर देते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं उसको, अगर अपना फोन की अगर फिर अपन विंडोज़ के अंदर अपन लॉगिन कर लेते हैं, अपन लैपटॉप में लॉगिन करते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे मतलब अपन चीज़ें अपन फिगर आउट करते हैं कि यार हाँ ये मेरे पास फोटोज़ है अपने पास एज ए मेमोरी। क्योंकि एक फ़ोन आप मैक्स टू मैक्स 2 to 3 years चलाते हो, एज ए इट्स अबाउट द रिसर्च की कोई इंसान 2 से 3 साल तक फ़ोन चलाता है, उसके बाद नया फ़ोन लेता है। अब कोई को ऐसा था कि यार बहुत 5 से 6 साल वो फ़ोन चला रहा है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द थिंग। बट सर्टेन क्या होता है, कभी कभार हमारा फ़ोन करप्ट हो गया या कुछ हो गया तो हमारे पास बैकअप नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्लाउड यूज़ करते हैं कि क्लाउड के अपना पूरा की पूरा जो डेटा है हम उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये अपलोड करने के बाद क्या होता है अपने पास कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बैंगलोर में बैठा हूँ, ओके, आई एम राइट ऑन द बैंगलोर। अगर मैं चाहता हूँ यार मैं उसको गुजरात में हूँ, गुजरात में मेरा एक फ्रेंड है, वो उस फोटोज़ को अपलोड कर लिया, मेरी फैमिली है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे फोटोज़ को देखे, तो मैं मेरा फ़ोन तो भेज नहीं सकता वहाँ पे, जाहिर सी बात है कि यार फ़ोन तो अपन भेज नहीं सकते। तो अपन क्या करते हैं, गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देते हैं, है ना। तो गूगल ड्राइव से क्या होता है, अपन उनको उनको लिंक शेयर कर देते हैं, तो वो लोग फिर वो उस फोटोज़ को देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास एक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट हो गया। इसको अपन बोलते हैं असेसिबिलिटी मतलब क्या होती है कि कहीं से भी एक्सेसिबल है ना। एक्सेसिबल है मतलब कि कहीं से भी तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, एक कोई भी आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो, कोई भी कोने के वर्ल्ड, कोई भी दुनिया में हो, कोई भी अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में हो, मैं इंडिया में, तो मैं शेयर कर दूंगा, तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट हम लोग क्लाउड की यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड कम्स अप इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसके लिए कि तुमको ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कि मतलब तुम पे नहीं करते उसको इतना ज़्यादा कि यार, जब तक कि हम तभी पे करते जब हमारे पास जब तुम गूगल ड्राइव अपनी खोलते हो तो अपने को 15 GB की लिमिट प्रोवाइड करता है ना। 15 GB की अपने को लिमिट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर तुमको एक्सटेंड करना है तो अपने को पे करना पड़ता है, कुछ छोटा मोटा अमाउंट रहता है, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट रहता है कि 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये ले लो। एक छोटा मिनिमल उसके पैकेजेस रहते हैं, वो अपन बाय कर लो और उसको अपने को एक्सटेंडेड मिल जाती है। 30 GB चाहते हो या 100 GB चाहते हो, जितनी भी चाहिए अपन उसके अकॉर्डिंगली अपने को मिल जाती है। तो इसी टाइप से चीज़ें क्या होती है अपने पास कि हम लोग उस चीज़ को क्लाउड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग उसको कॉस्ट इफेक्टेंसी है, कॉस्ट इफेक्टेंसी इसके लिए क्योंकि हमें उतना पे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अपना सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कॉस्ट इफिशिएंसी। ठीक है, 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्केबिलिटी। देखो स्केबिलिटी हम लोग इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेबल है, तुम इसको कितना भी यूज़ कर सकते हो, तुम इसके अंदर कितना कितना भी डेटा डाल सकते हो। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि तुम 2 ही फाइल डाल सकते हो, 3 फाइल डाल सकते हो, तुमने 10 फोटो डाल दी उसके बाद डाल नहीं सकते। इसको कितना भी कर सकते हो तुम, अगर उसको चाहते हो कि मेरे 15 GB से 18 GB कर लो, 18 से 20 GB कर, तो ये स्केलेबल होता है, ये एक टाइप से बढ़ता रहता है। ठीक है, ये अपन ने ये दो चीज़ें अपने क्वेश्चन सीख लिया, अपन क्लाउड क्या होता है, व्हाट इज क्लाउड, एंड अनदर व्हाई वी यूज क्लाउड।
ठीक है, अब दो चीज़ें अपने पास सॉल्व हो गई। अब अपन के पास तीसरी चीज़ ये आती है कि यार चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्लाउड क्या होता है, हमको क्लाउड की यूज़ चाहिए। पर तीसरी चीज़ आती है हमें, वाई डू वी नीड क्लाउड। हमने पहले क्या देखा, हम क्लाउड की यूज़ करते हैं, है ना, वाई वी आर यूजिंग क्लाउड। अब हम लोग देख ले वाई वी नीड क्लाउड। सेम जैसे कि मैंने बताया था डिजास्टर रिकवरी वाला पार्ट। डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा फ़ोन एकदम से करप्ट हो गया या बंद हो गया या सडनली उड़ गया, डेटा डेटा लॉस्ट हो गया, तो उसके लिए हम लोग एक टेक्निकल टर्म से, दिस इज नथिंग, एक स्मॉल चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ना यार, हमारा डेटा उड़ ना जाए, तो उसका हम बैकअप लेते हैं। तो बैकअप लेने की जगह हम लोग उसको टेक्निकल टर्म दे दी हमने, डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी कर पाए हम लोग। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी मतलब जैसे कि फॉर्मेट हो गया, तो अपने को वापस लेकर आने की पूरा डेटा, तो ये इसका तो अपन क्या करते हैं, गूगल ड्राइव के ऊपर अपना पूरा की पूरा व्हाट्सएप का बैकअप रहता है। सडनली क्या होता है अपने पास, जैसे कि अपन व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अब कुछ चैट डिलीट हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं यार, अपने पास तो बैकअप पड़ा हुआ है, शायद उससे वापस आ जाए, तो अपन करते हैं ना, तो इसी को अपन डिजास्टर रिकवरी कहते हैं। मतलब फॉर्मेटेड डेटा को अपन को वापस लाना, ये डिजास्टर रिकवरी का काम होता है। ये बहुत बड़ा मतलब प्ले करता है रोल क्लाउड के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम लोग ऐसी बात करें, तो अपन लोग इसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज बेंगलोर में बैठा हूँ और तुम लोग भोपाल में हो, तो मैं कोई गूगल ड्राइव तुमको फोटो शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग वहाँ बैठ के भी एक्सेस कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि मुझे मेरा फ़ोन तुमको देना ही पड़ेगा, तुम वहाँ पे जाके देख रहे हो। तो ये इसकी सेकंड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। और थर्ड अपना हो गया अपना डेटा स्टोरेज। तो तुम इसमें कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो तुम चाहते हो कि इतना हो, 15 हो, 10 फोटोज हो, 20 फोटो हो, जितना भी तुम चाहते हो, उसको स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपन कर सकते हैं। ठीक है, अपने चीज़ें क्लियर हो गई कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड की यूज़ करते हैं और हमें क्लाउड क्यों चाहिए। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि चलो हमने क्लाउड के बारे में हमें तो पता चल गया क्या क्या चीज़ें होती है, पर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब यार दुनिया में बहुत टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पानी बरसाने वाला क्लाउड हो गया, एक बिजली वाला बादल हो गया, फिर एक अलग अलग टाइप्स के ऐसे ऐसे क्लाउड नहीं होते। अपने पास ये होते तीन टाइप के क्लाउड, है ना, इन द इंडस्ट्रीज एंड इफ यू आर वर्किंग एज अ टेक प्रोफेशनल वाला काम, कि हम लोग क्लाउड इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेवॉप्स, हम उसको डेवॉप्स का वर्ल्ड भी बोलते हैं। विल कम दिस ऑन द लेटर पार्ट, बट हम लोग अभी क्लाउड के टर्म्स को हम लोग फैमिलियर कर रहे हैं, जिससे कि हमें आगे की चीज़ें सिंपल लगे। एक होता है अपने पास पब्लिक क्लाउड। ठीक है, अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है बताता हूँ। एक तुम गार्डन है, तुम जहाँ भी रहते हो, लाइक भोपाल रहते हो, चलो ठीक है, तो भोपाल में अपने पास लेक व्यू है, तो लेक व्यू कैसा पब्लिक है ना, कोई भी वहाँ पे जा सकता है, कोई भी उसको विजिट कर सकता है, कोई भी वहाँ पे बोटिंग कर सकता है, तो इट्स ओपन टू ऑल। मतलब पब्लिक मतलब ओपन टू ऑल, एवरी एनी वन कैन कम, एनी वन कैन यूज, कोई हर कोई मजे करता है, हर कोई वीकेंड्स पे जाता है, हर कोई इंजॉयमेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास पब्लिक वाला, पब्लिक क्लाउड। ठीक है, दिस इज पब्लिक क्लाउड। सो अपन लेक की जगह मतलब से अपने पास गार्डन भी होते हैं ना, मतलब पब्लिकली होते हैं ओपन, तो कोई भी जा रहा है वहाँ पे, कोई भी आ रहा है और वो सब चीज़ें मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, पर हम लोग यही चाहते हैं कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो जाए, हम हमारा खुद का एक क्लाउड बना ले, हम लोग हमारा खुद का तालाब बना ले। अगर तुम्हारे खुद का तालाब रहेगा, ठीक है, या तुम्हारे खुद का गार्डन रहेगा, तो कोई क्यों आएगा, है ना, तो यू विल हैव रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर। दोज रिस्ट्रिक्शंस विल बी लाइक नो वन कैन एंटर इन योर प्राइवेट स्पेस, वो तुम्हारा प्राइवेट स्पेस, जैसे घर तुम्हारा प्राइवेट स्पेस हो गया। सो एक टाइप का क्लाउड हो गया अपना पब्लिक क्लाउड, दूसरा हो गया अपना प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, ये अपनी दो टर्म्स समझ में आ गए। अब तीसरा टाइप का क्लाउड क्या होता है, एक अपने पास हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड मतलब प्राइवेट प्लस पब्लिक क्लाउड, ये दोनों क्लाउड को मिलाकर के हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड का कंसेप्ट आता है। अब जैसे कि देखो, मैं पब्लिक क्लाउड के कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब, अब सारे सारे ऑल आर यू आर टेकीज, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि यार AWS का बहुत नाम चलता है, एजोर का बहुत नाम चलता है, जैसे कि फिर गूगल क्लाउड का बहुत नाम चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक क्लाउड है, कि हर कोई वहाँ पर जा कर के सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। जैसे कि AWS के अंदर अपने पास EC2 सर्विस हो गई, फिर उसके बाद S3 सर्विस हो गई, फिर उसके बाद अलग अलग हमारे पास सर्विसेज होती है। वी हैव 50+ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द AWS। सेम हमारे पास, जैसे कि AWS की अपन ने बात करी पब्लिक क्लाउड की, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक क्लाउड राइट नाउ।
Same, we have Azure. Same, we have GCP. Same, we have Alibaba. वी हैव हीरोकू. तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के अपने पास क्लाउड्स है. तो AWS जो है ये अमेजोन का क्लाउड होता है. ये अमेजोन कंपनी जो है ये क्लाउड को यूज कर रही है. ठीक है, दिस इज ऑफर्ड बाय अमेजोन कंपनी. एजर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है. ठीक है. और सेम GCP जो है वो गूगल का क्लाउड है. GCP के मतलब तुम लोग जैसे गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है, सो दे ऑफर दे डू मतलब GCP क्लाउड्स के ऊपर जैसे कि क्विक क्लैप्स आती है तुम लोग जनरली करते हो, तो वो पूरा GCP क्लाउड के ऊपर तुम करते हो. और फिर माइक्रोसॉफ्ट अजर के तुमने देखा होगा लाइक सोसाइटी में पीपल्स लाइक ऋषभ इज MLS है, ही इज माइक्रोसॉफ्ट अजर लाइक माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर. सो ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड के बारे में पढ़ाते हैं, क्लाउड के बारे में सिखाते हैं. एंड दिस इज AWS अमेजॉन. इट्स क्वाइट मोर ऑन द टॉप ऑफ द इन द मार्केट राइट नाउ. ठीक है. अगर तुम लोग अमेजॉन देखोगे तो जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अमेजॉन AWS केस स्टडी. लेट मी क्विकली ओपन AWS कंसोल. ओके, इट्स नॉट अबाउट द स्पेसिफिक AWS बट हम लोग चीज़ें देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स है. ठीक है, नेटफ्लिक्स के बाद अपने देखो मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं. एक तो अपनी नेटफ्लिक्स हो गई. अब नेटफ्लिक्स क्या करती है, उसके ऊपर तो भाई काफ़ी ज़्यादा यूजर्स आते हैं, कम से कम करोड़ों में यूजर्स हो गए है ना. हर कोई इसका सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ है ना. तो करोड़ों सब्सक्रिप्शन होंगे. तो उस सबको मेंटेन करना, भाई किसी का डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, किसी का कुछ होना नहीं चाहिए, कोई उनको अपन हमेशा ऑन करते हैं है ना, तो अपने को हमेशा पीक पे मिलता है. मतलब पूरी स्ट्रीमिंग सही होती है, वो मूवी का हाई रिजोल्यूशन होता है, मतलब 1080p या 4P के अंदर होता है, 4K के अंदर होता है. सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है. ये सब कौन प्रोवाइड कर पाता है हमको? क्लाउड. कि स्केबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, असेसिबिलिटी, दैन डिजास्टर रिकवरी, ये इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हमें ये सब चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करती है. ठीक है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्या करते हैं कि केस स्टडीज पे आते हैं. ओके, आई थिंक इट्स टेकिंग क्वाइट अ लॉट टाइम. AWS केस स्टडी तुम लोग इसके ऊपर देखना. बायोएसएल आई थिंक मेरा नेट, हाँ ओके. सो अगर तुम लोग इसकी केस स्टडीज देखोगे ना, तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हॉटस्टार, हॉटस्टार पे सब अभी मैच देखते हैं है ना. इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो तुम लोग देखोगे नॉट ऑन द हॉटस्टार, इट्स व्हाट्स कमिंग ऑन द जियो सिनेमा राइट. सो हॉटस्टार के ऊपर जैसे कि अपन IPL भी जी सिनेमा के T20 का वर्ल्ड कप देखा होगा है ना. तो T20 का वर्ल्ड कप के अंदर भी क्या होता है कि जो स्ट्रीमिंग आती है वो करोड़ों में आती है एक ही बार में. जितना जो ट्रैफिक आता है करोड़ों में आता है. अगर उनकी वेबसाइट डाउन हो गई तो वो उस सर्विस को कोई यूज़ नहीं करेगा हॉटस्टार को राइट. जैसे जियो सिनेमा भी पूरा AWS पे डिपेंडेंट है. उसकी जितनी बैकहैंड है वो सब चीज़ें AWS के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ऐसे ही चीज़ें वर्क करती है बिहाइंड द सीन. एंड हम लोग चेक करते हैं कि यार कोई हमें डाउन टाउन ना आए और हम लोग के लिए सब चीज़ें इफ़िशिएंटली वर्क करें है ना. नो डाउन टाइम, सब चीज़ें ऑल हमेशा के लिए वर्क करें. ओके, ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है व्हेन वी आर इन द इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्री. एंड वी ऑल आर टेकी पर्सन. सो हमें इन सब का नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग ये सब चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड व्हाट डज इट हेल्प्स. ओके, हम लोग को पता चल गया कि टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होते हैं. हम लोगों को ये भी पता चल गया कि क्लाउड जनरली होता है कि एक सबके माइंड में जनरल कंसेप्ट एंड ओवरव्यू बिल्ड हो गया होगा. अब हम लोग आते हैं आगे. लेट मी क्विकली ओके. सो सबके माइंड में ये सब चीज़ें आ गई कि क्लाउड होता क्या एंड व्हाट ऑल डज द क्लाउड डू. अब अपन आते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे कि चलो हमने क्लाउड के बारे हम लोगों ने अभी तक के सब देख लिया. अब हम चाहते हैं कि क्लाउड के सर्विस मॉडल क्या क्या होते हैं. वी आर गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स है ना. कोई भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है ना, कि कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं, क्या क्या क्लाउड टाइप्स के क्लाउड होते हैं. सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर इंडस्ट्रीज है ना. हम लोग उसको धीरे धीरे एक्सपांड करते जाएंगे कि क्लाउड की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए. विल डू
स्टेप बाय स्टेप ओके अप्रोच ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है हमारे पास, हम देख रहे हैं क्लाउड सर्विसेज मॉडल, क्लाउड सर्विस मॉडल। ठीक है, अब ये जो है ये अपने पास आई एम सो सॉरी थोड़ी सी, ठीक है नेक्स्ट टाइम। तो हमारे पास ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आस, ठीक है, एक होता है आस, इसको बोलते हैं अपन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। एक दूसरा होता है अपने पास पास, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। और तीसरा होता है अपने पास सास, इसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ठीक है, अब इन तीनों की चीजें और फंक्शनलिटी क्या क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से तुमको क्या पता चल रहा है कि यार हमको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा होगा, है ना, तो हमको उसके ऊपर काम कर रहे होगे, राइट। जैसे कि अपने पास अपन क्या करते, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को मिल जाता है, अपन एक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके अंदर अपन रेंट कर ले रहे चीज़ों को, है ना, तो अपने को क्या मिल गया, एक कोड कंसेप्ट मिल गया। मतलब जैसे कि कोई एक सर्विस, जैसे कि AWS के ऊपर तुम जाओगे तो अपने पास एक स्पेसिफिक सर्विस होती है EC2, है ना, तो अपने को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल मिल गया, हम लोग उसके ऊपर पूरा की पूरा अपनी चीज़ें बिल्डअप कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब सेकंड अपन आते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस। प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस क्या होता है, अपने पास रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, बस अपन को जाना है, यूज़ करना है। जैसे कि अपने पास गिटहब, गिटहब क्या है, अपने पास एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब वहाँ पे अपन कमिट्स करते, ओपन सोर्स के बारे में काफ़ी तुम लोगों ने सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बूमिंग हो रहा है। वाइल दिस इज बूमिंग मैं बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। कमिंग अभी हम लोग प्लेटफॉर्म में सर्विस होंगे। प्लेटफॉर्म सर्विस मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है एंड यू आर जस्ट वर्किंग ऑन इट ऑन दोस पार्ट, ठीक है। और तीसरा आते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर तुम्हारे पास अपने पास सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि अपने पास जीमेल है, जीमेल इज नथिंग बट ए सॉफ्टवेयर। तुम जीमेल कैसे यूज करते हो, किसी ओपन करते हो एंड वहाँ पे जाते हो एंड यू स्टार्ट यूजिंग दिस जीमेल वाला पार्ट। ओके, सो दिस ऑल आर द थ्री क्लाउड सर्विस मॉडल्स विच आर बेसिकली इन द मार्केट। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ उसके छोटे से डायग्राम्स से रिलेटेड। AWS सॉरी, देखो क्लाउड सर्विस मॉडल के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती है ना। जैसे कि आस पास सास, अपन एक बहुत प्यार से एग्जांपल लेके समझते हैं इसके अंदर। लेट मी क्विकली ओपन इट, ओके। लेट मी क्विकली अगेन ओपन पेंट। Just hold on one thing minute, let me quickly copy image, या ठीक है। तो देखो मैं बता रहा था तुम लोगों को इसके अंदर आस पास और सास के बारे में अपन लोग देख रहे थे। तो आस पास सास के अंदर देखो जनरली होता क्या है, सास के अंदर ये ब्लू मतलब यू मैनेज एंड प्रोवाइडर मैनेज। तो अपने पास सास मतलब मैंने क्या तुम लोगों को एग्जांपल क्या बताया था, अपने को मैंने बताया था तुमको जीमेल। तो जीमेल में क्या होता है कि एप्लीकेशन है जिसके अंदर डेटा वेटा रन टाइम मिडिल ओएस ऑफ वर्चुअलाइजेशन सर्वर ये सब अपने को दिया रहता है, बस अपने को उसको यूज करना होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रोवाइडर्स मैनेज, अपने को पूरा प्रोवाइड करके रखा है, अपने पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बस अपन जैसे कि OBS हो गया या फिर अपने पास जीमेल हो गया या फिर अपने पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, ये अपने पास एक सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर जस्ट वी आर यूजिंग, ठीक है। बट अगर अपन पास की बात करते हैं तो एक अपने पास प्लेटफॉर्म है ना। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने को एप्लीकेशन डिप्लॉय भी करना है, डेटा भी डिप्लॉय करने का है, ठीक है। ये अपने पास एक प्लेटफॉर्म जैसे कि एक सर्टेन प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर हम डिप्लॉय कर रहे हैं। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने को EC2 के बारे में अगर किसी को पता हो तो लेट मी जस्ट गिव यू हाई लेवल आइडिया। EC2 में क्या होता है, अपने पास एक इंस्टेंस होता है। EC2 मतलब एक इंस्टेंस वाला पार्ट होता है ना। EC2 में क्या होता है, अपन जब लॉन्च करते हैं ना इसके अंदर चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी अब मशीन अपने को लॉन्च करना है। आई नीड टू लॉन्च लिनक्स मशीन,
ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो अपन क्या चेक करते हैं, मतलब अपन जब लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, अपन जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं अपन क्या देखते हैं कि अपने को लिनक्स इंस्टॉल करना चाहिए या उबंटू इंस्टॉल करना चाहिए या लिनक्स इंस्टॉल करना चाहिए, अपन ये मतलब विंडोज इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। अपन ये सब चीज़ें देखते हैं। ये होने के बाद अपन क्या देखते हैं कि X64 XRM 64 करे या XRM 32 करे, ठीक है। अपन ये दोनों अपन चीज़ें देखते हैं। ये चेक करने के बाद अपन क्या जाते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाते हैं, अपने को क्या क्या मिल रहा है, अपने को कितनी कितनी रैम मिल रही है, ठीक है, कितना अपने को हार्ड ड्राइव मिल रहा है, ठीक है। अपने आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा वो भी आ गया है गेमिंग के लिए। आई एम नॉट गेटिंग दो ग्राफिक्स कार्ड, या आज के टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड भी आ गए 2 GB, मतलब अपने का आजकल आते 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, अगर आप उसको कराओगे इनबुल तो आपका कंप्यूटर स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो ऐसे ही EC2 एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है जो हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, ये सब हमको मैनेज करना पड़ता है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, डेटा क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्ट करना है। सो ऑल दोज थिंग्स मैटर हो, मतलब ये सब हमारी चीज़ें मैटर करती है। So this was the whole thing about the cloud and how you are going to use, what is the brief about this cloud. किसी को कुछ डाउट हो so you can ask me. We are just having a quick 10 minutes conversation, then हम लोग फिर आगे की और move करेंगे. If anyone have any doubt you can just ask me. बस किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो अभी, और यू कैन ऑल्सो सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अगर नहीं बोल पा रहे कैन यू रिपीट C2? Sure, Lucky, this will see in the tomorrow's demo practical. हम लोग कल एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा वो। तो उसके अंदर हम लोग EC2 के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे। EC2 मतलब अपने पास इंस्टेंस होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। एक इंस्टेंस है जिसके ऊपर हम लोग चीज़ें लॉन्च करते हैं। अगर तुम्हें कुछ जैसे कि कौन सी मशीन हमको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, विल सी मोर डिप डाउन इनटू इट टुमारो। आज हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहते हैं और हम लोग क्लाउड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इफ एनीवन हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे उसको धीरे धीरे। आई गेस सब यहाँ पे प्रो लेवल वाले हैं शायद, किसी सबको को सब कोई आता डाउट है, नहीं आ रहा। सबको सब आता है शायद। या गाइस समझ तो आ रही है ना चीजें जो बताई जा रही है? नहीं यार, तो फिर हम लोग उसको सेकंड वे के अंदर डिस्क्राइब करें। कनिष्का, इट्स डिपेंड्स ऑन अस कि विच वन इज मतलब इजी? इट्स डिपेंड्स ऑन अस बेसिकली, मतलब तुम्हें किस में एक्सप्लोर करना है अभी। राइट नाउ GCP का मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। इट बट मतलब मैं कंपनीज में भी काम कर रहा हूँ, सो दे आर अडप्टिंग एजर डेवऑप्स एंड AWS डेवऑप्स। मतलब GCP का मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। मतलब वो बच्चों को सिखाते हैं कि क्विक लैब्स के थ्रू, बट दे आर मोर मूविंग टूवर्ड्स द चैट जीपीटी पार्ट। दे आर मतलब दे आर क्रिएटिंग देयर ओन चैट जीपीटी। सो अभी राइट नाउ मार्केट GCP का इतना नहीं है। AWS and Azure have both equal markets and they are the top competitor in the market. Anyone else? Something? So ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो अब हम लोग आगे की ओर मूव करते चीज़ों को देखते हैं, है ना, कि व्हाट इज द नेक्स्ट चीज। अब अपन ने पूरा क्या 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 सीख लिया, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर सो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन, है ना। अपन ने सीख लिया क्लाउड क्या होता है ना। अपन ने देखा जस्ट मिनट, आई थिंक समथिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग।
or it's just a minute, like there is something wrong. Just second. Okay, okay, no issues. चलो ठीक है, छोड़ो उसको, नहीं हो रहा तो, है ना। तो अपन थोड़े से सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब मतलब बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं कि हम लोग रोड मैप भी देखेंगे इसके बाद, व्हाट व्हाट ऑल द रोड मैप्स वी हैव। बट देखो क्या होता है कि व्हेन व्हेन यू नो द क्लाउड, अब देखो अपन ने क्लाउड का नॉलेज तो हो गया, ठीक है, अब तुम लोगों ने सब पढ़ लिया, है ना। अपन ने क्लाउड भी पढ़ लिया, अपन ने डेवऑप्स भी पढ़ लिया, अपन ने सब पढ़ लिया, ठीक है। या ठीक है। तो अब क्या होता है जनरली, अपन मूव करते हैं आगे एक फर्दर स्टेप चलने को, है ना। तो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, है ना। अब अपन देखते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद डेवॉप्स पार्ट, है ना। तो अपन पहले टर्म समझते डेवॉप्स होता क्या है ना। मतलब अपन क्लाउड, तो चलो तुमने एज ए चूज कर लिया अपना करियर, आई जस्ट नीड टू स्टार्ट विद द क्लाउड नाउ। आई थिंक समथिंग हैज हैपेंड, ओके। सो एवरीवन हैज थॉट कि चलो यार अब हम, है ना, डेवऑप्स के बारे में, एक मिनट, समथिंग हैपेंड, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग। अब हम लोग डेवऑप्स के बारे में देखते हैं। हमने चीज़ें देख ली कि क्लाउड क्या होता है, व्हाट ऑल द क्लाउड क्या होता है ना। आई थिंक, सॉरी, है ना। अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने क्लाउड क्या होता है ना। व्हाट इज हैपनिंग, है ना। अपने क्लाउड देख लिया कि कौन कौन से टाइप्स के क्लाउड होते हैं अपने पास, है ना। हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। फिर उसके बाद अपन ने देख लिया सर्विस मॉडल कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे अपन ने क्या क्या देख लिया, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। छोड़ो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन डेवऑप्स के बारे में देखना चाह रहे हैं कि यार अब डेवऑप्स जनरली होता क्या है। सो लेट मी टेल यू। अब यार ये दुनिया पूरी ऑटोमेशन की हो गई है। अगर तुम लोग सर्च करोगे ना राइट नाउ इन द मार्केट, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि आफ्टर कोविड चीज़ों कंपनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदली है कंपनीज के परफेक्ट परस्पेक्टिवली। क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक इट्स टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्शन पार्ट कि यार रिसर्शन बहुत है, जॉब्स कैसे मिलेगी क्या है। बट अगर आपकी स्किल्स होती है ना, तो कहीं ना कहीं जॉब यू विल फाइंड अ परफेक्ट जॉब। बट आपको यू नीड टू गिव योर 200%। अभी क्या होता है, 100% से कुछ नहीं होता। लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक डेवलपर, तो फुल स्टैक डेवलपर में पहले क्या होता था कि यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गया, एंड अगर मेरे को एक और चीज़ समझ लो रिएक्ट भी पढ़ी तो काफ़ी बड़ी बात है, मन भी पड़ा काफ़ी बड़ी बात है। बट राइट नाउ फुल स्टैक मीन्स आपको बैक हैंड भी आना चाहिए, आपको फ्रंट हैंड भी आना चाहिए, आपको सब चीज़ आनी चाहिए। तो डेवॉप्स में भी ऐसा ही होता है कि वैन यू आर एंटरिंग इनटू डेवॉप्स वर्ल्ड, है ना, तो सबसे पहले यू आपको क्लाउड का नॉलेज हो गया, ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड। बट जब एंटर करते हो, जब टूल्स के साथ खेलना शुरू करते हो, जब तुम टूल्स सीखना स्टार्ट करते हो, तो इसके डेवॉप्स में भी अलग अलग काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं, है ना। लेट मी क्विकली ओपन अनदर पेंट। ठीक है, ये होता रहेगा जब तक कि बताता हूँ तुम लोगों को। लेट मी नॉट
नॉट सेव दिस एंड वी हैव, ठीक है। अपन डेवॉप्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है, कि डेवॉप्स क्या होता है। अब डेवॉप्स जो है वो टू टर्म्स को मिलकर के बना है। एक होता है डेव प्लस ऑप्स, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। जब डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन टीम्स टुगेदर कंबाइन होके आती है तो ये बन जाता है अपना डेवॉप्स वाला पार्ट। अब ये सब चीज़ें क्यों होती है यार, डेवॉप्स इतना वास्ट क्यों चल रहा है आज के टाइम पे, इतना इतना क्लाउड को क्यों ब्रूम दे रहे हैं, इतना सब क्यों हो रहा है ना। दिस माइंड कम्स इनटू, यार लिंक्डइन पे देखो तो क्लाउड की बहुत ज़्यादा जॉब्स से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राइट नाउ मार्केट इंडस्ट्रीज वांट कि यार मेरी चीज़ें ऑटोमेट होए। अब क्या होता है कि पहले तुम लोग सी प्लस प्लस यूज़ करते थे, तो सी प्लस प्लस और जावा के बीच में क्या होता था कि जहाँ सी प्लस प्लस का कोड 20 लाइन का है, वहीं जावा 10 लाइन में वो होके खत्म हो जाती थी। तो लोगों ने सी प्लस प्लस जावा से लिया, क्योंकि यार कंपनीज चाहती कि यार हमारे जहाँ कोड लिखने में 3 से 4 दिन जा रहे, वहीं अगर हमारे 1 से 1.5 दिन में काम हो जा रहा है, तो वाई वी नॉट, क्योंकि उन्हें तो प्रोडक्ट डिलीवर करना है ना मार्केट के अंदर फास्टर। दिस मैटर्स अलॉट कि आप प्रोडक्ट को कितनी जल्दी डिलीवर करते हैं एंड इफिशिएंटली डिलीवर करते हो। अब क्या हो गया, सी प्लस प्लस के बाद क्या आ गया अपने पास पाइथन आ गई, है ना। पहले सी प्लस प्लस आई, फिर अभी जावा आई, फिर जावा के बाद क्या आ गया, पाइथन आ गया। अब पाइथन में क्या होता है कि अगर तुमको कोई कोड को अपने को प्रिंट कराना है ना, कोई सर्टेन कोड को अपने को प्रिंट कराना है, तो उसके अंदर अपने को समझ लो 10 लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। अपने को वही जावा के अंदर 7 से 8 लाइन लिखनी पड़ती है, या सपोज मान लो 6 लाइन वी हैव टू लिख, मतलब इंपोर्ट करना है लाइब्रेरीज, देन देयर आर सर्टेन innotations and adding class and adding many things are there। अगर कुछ चीज़ तुम्हें प्रिंट करानी है एंड देयर इज सर्टेन सिंटैक्स, अगर वही चीज़ तुम्हें पाइथन में प्रिंट करानी है, देयर इज ओनली वन क्विक लाइन, जस्ट राइट प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड व्हाट यू ऑल वांट टू वॉच। सो ये चीज़ें क्या हो गई, ऑटोमेट हो गई, ये कंपनी एडॉप्शन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों एडॉप्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यार हमें ऑटोमेट चाहिए, हमें जल्दी जल्दी चाहिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स को क्या होता है, हमको सब्र पसंद नहीं है। अब क्या होता है कि यार हम लोग इंस्टाग्राम इतना चलाने लग गए हैं कि हम लोग क्या, अगर 1-2 मिनट भी रुक के आती हैं रीलें, हम ब्लेम करते हैं यार इंस्टाग्राम कैसा है, साला मेरा नेटवर्क ख़राब है। अब वो अपन लोग ये नहीं देखते कि यार कहीं ना कहीं चलो इश्यू आ रहा होगा, हम लोगों के साथ पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी, लाइक 5G आ चुका है। तो 5G की स्पीड से क्या होता है, हम लोग हर रील को फटाफट फटाफट देखते हैं। अब उस रील में हमारा कब 1 आवर जब खत्म हो जाता है, हमें खुद को पता नहीं चलता है। सो ऐसे ही क्या होता है डेवऑप्स की वर्ल्ड में, हमें चीज़ें ऑटोमेशन चाहिए, स्पीड है, फास्टर चाहिए। जो चीज़ों को 10 दिन लग रहे, जो चीज़ों को 8 दिन लग रहे, वही चीज़ अगर 1 से 2 दिन में हो जाए तो इट्स अ बेनिफिट ऑफ कंपनी ना। क्योंकि एट द एंड कंपनी को तो पैसा कमाना है, दे वांट टू सी एंड दे वांट टू डिलीवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब बताओ पहले क्या होता था, एक याहू करके तुम लोगों ने सबने सुना ही होगा, याहू पहले बहुत चलता था, ठीक है। अब बंद क्यों हो गया, नॉट बंद, वो चलता है, तो उसके मुकाबले गूगल क्यों इतना ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वाई गूगल इज बूमिंग, क्योंकि इसका जो सर्च जो है, दे सर्च एंड गिव रिजल्ट आउटपुट इन 0.000 समथिंग कुछ सेकेंड्स में देता है। मतलब जितना ज़्यादा वो फास्ट रिजल्ट देता है, हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आती है। अगर यार कोई चीज़ को वेट लग रहा है, अगर सपोज ये 10 मिनट में दे रहा है, ये 5 मिनट में दे रहा है, तो तुम किसको चूज़ करोगे, तो ऑफकोर्स गूगल को चूज़ करोगे। अगर सपोज याहू का सर्च इंजन इतना अच्छा हो जाए, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, कि ये 2 मिनट में देने लगे और गूगल वही 3 मिनट में देने लगे, तो तुम याहू पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो, क्योंकि दिस इज द इंडस्ट्री, यू डोंट वांट टू वेट फॉर सर्टेन थिंग्स। कोई चीज़ के लिए हमें रुकना नहीं है, बस हम चाहते हैं कि इसके पीछे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, है ना। जैसे कि ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर। अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं ना, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ की पावर एन, ओ ऑफ लॉग एन, है ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये सब चीज़ें मैटर करती है कि यार वो कितनी जल्दी रिट्रीव करके दे रहा है। वर्स्ट टाइम, जब तुम डीएसए पढ़ोगे, वर्स्ट टाइम, बेस्ट टाइम, है ना, और एक वर्स्ट केस बेस्ट केस वाला पार्ट आता है। ये सब चीज़ों के अंदर 1 हो गया, एन हो गया, 0 हो गया, ये सब चीज़ें मैटर करती है। कब मैटर करती है, जब तुम ये सब, हमें फास्टर रिजल्ट चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए। तो इसी के लिए हमारे पास डेवऑप्स का कंसेप्ट आया। डेवऑप्स मतलब तुम चीज़ों को ऑटोमेट करके दे रहे हो, फास्टर करके दे रहे हो। अब देखो एक जनरल एग्जांपल, एक तुम डेवलपर हो, ओके, यू आर वर्किंग इन द कंपनी एज अ प्रोफेशनल पर्सन, एक तुम डेवलपर हो। अब तुम चाहते हो कि यार चीज़ें, एक तुमने कोड में चेंज करा है, तुमने कमिट कर दिया, अब वीकेंड आ गया, तो 2 दिन के लिए तो पेंडिंग हो गया। अब कब टेस्टर आएगा, ठीक है, मंडे को, फिर वो चेक करेगा, फिर कुछ गलती हुई या कुछ सक्सेस हुआ, कुछ बग आ रहा है, फिर उसको 1 से 2 दिन लग गए टेस्टिंग के अंदर, फिर वो तीसरे दिन के अंदर जाएगा, फिर वो कुल मिला करके फिर
वो अगर सब सही रहा तो प्रोडक्शन के अंदर जाएगा। प्रोडक्शन मतलब अपना डिप्लॉयमेंट, ठीक है। पर टेक्निकल टर्म्स डोंट गेट कंफ्यूज, तो टेक्निकल टर्म्स से यू विल गेट फैमिलियर। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। अब क्या हो गया, अब इस प्रोसेस के अंदर वो फ्राइडे से डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ था, वो पूरा 1 वीक में रिव्यू करते रहते अगले फ्राइडे आ गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कंपनी के लिए तो वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो गया ना यार। हम तो पैसे तो दे रहे डेवलपर को, बट इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें लेट होती है, तो वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर पार्ट्स टू बी कम्स, एंड वी डोंट वांट कि ये सब चीज़ें इतने डिले होए। तो आज के टाइम पे क्या करता है डेवॉप्स, एक टूल होता है जेंकिंस, ठीक है, सबने सुना होगा CI/CD। जेंकिंस करके एक टूल क्या करता है ये, कि जैसे ही एक डेवलपर कमिट करता है कोई फाइल के अंदर, वो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें रन कर देगा। आई विल शो यू विद द डेमो क्या क्या होता है ना। वो ही फाइल को बिल्ड भी करेगा, रन करेगा और सक्सेड कर देगा, वही की वही चीज़ डिप्लॉय कर देगा। तो ये सब जो फाइल है, जो एक हफ्ते का काम था, वो पूरे एक दिन में चेंज हो गया है, कि डेवलपर सिर्फ चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो बिल्ड भी हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो टेस्ट भी हो रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है हमें सामने के सामने उसी दिन पता चल जा रहा है, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर, जितना भी चीज़ें। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ऑटोमेशन हो गया ना। अब ये सब कंपनी से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कि लोग, हर कंपनी क्लाउड यूज़ करती है, क्योंकि दे वांट कि यार हमारा, चलो डेवलपर तो ठीक है यार, है ना, यू आर ए फुल स्टैक डेवलपर, आप कोड कर रहे हो, बट चीज़ों को ऑटोमेट करना, लोगों तक पहुंचाना इन अ फास्टर वे, ठीक है, ये सब डेवॉप्स का काम होता है। जैसे कि अपने पास लिनक्स होता है, अब सबने लिनक्स तो यूज़ करा ही होगा, है ना। तो लिनक्स में जनरली क्या होता है, अपने पास अपन कोई फोल्डर बनाते। अब फोल्डर बनाते तुम वो पर्टिकुलर प्लेस पे जाओगे, दैन उसके ऊपर हिट करोगे, न्यू फोल्डर में जाओगे, न्यू फोल्डर बनाओगे। सो हम लिनक्स के थ्रू जाते हैं, जैसे कि हम CD कमांड यूज़ करते हैं, हम लोग कोई पर्टिकुलर कमांड्स यूज़ करते हैं, एंड वी गो स्टेप बाय स्टेप। सो ये सब चीज़ें मैटर करने स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू आर ए टेक्निकल पर्सन, व्हेन यू हैव ए नॉलेज ऑल दोस पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब मैंने बोला कि अपने को ऑटोमेशन की बात है। अब ऑटोमेशन में क्या होता है, अब जैसे कि लेट मी गिव एग्जांपल, एक टूल होता है डॉकर करके। डॉकर एक टूल होता है, डेवॉप्स का टूल होता है, कंटेनराइजेशन का नाम बोलते हैं, ठीक है। लेट मी क्विकली गिव यू द नेम डॉकर, है ना। ये डॉकर होता है, एक टूल होता है। ये टूल करता क्या है, कि कंटेनराइजेशन होता है। अब जैसे कि तुम विंडोज़ लॉन्च करते हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो कम से कम तुम्हारा 3 से 4 घंटे का काम हो जाता है ना। 3 to 4 आवर्स का वो काम हो जाता है तुम्हारा। तो तुम क्या चाहते हो कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना प्रोसेस करना, इतना सब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जा रही है, तो मुझे इतना नहीं चाहता हूँ कि यार इतना टाइम लगे। तो डॉकर क्या करता है, एक कंटेनराइजेशन टूल होता है, जो तुमको प्री कॉन्फ़िगर्ड OS सिर्फ 1 सेकेंड में लॉन्च करके देता है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर। दिस इज अ गारंटीड थिंग्स एंड विच हैपेंस। मैं तुमको बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। तुम लोग को सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर तुमको, तुम्हारे पे जैसे विंडोज कॉन्फ़िगरेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वैसे ही ये सब चीज़ें बहुत स्पीड में कर देता है। तो लोगों को क्या ये पसंद आने लग गया, कि नहीं यार हमारा काम 3-4 घंटे वाला काम अगर हमारे 1 सेकेंड में हो रहा है, तो ये तो बहुत सही चीज़ है। अब मैं बता दूँ क्या हुआ, जैसे कि तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। अब तुम्हारे लैपटॉप के अंदर पाइथन का कोड है, जावा का कोड है, मतलब यू हैव अबाउट 40 to 50 GB ऑफ डेटा, सपोज एग्जाम्पल। अब तुम चाहते हो कि यार ये मेरा डेटा कहीं रहे, कि अगर मेरा लैपटॉप करप्ट हो गया, और वही वो जो तुम्हारे जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है, वो कोई सेकंड पर्सन भी यूज़ कर सके, तो हम लोग उसको कंटेनर के अंदर पैक कर देते। कंटेनर मतलब क्या होता है, अपन शिप से क्या करते हो, मैं बता दूँ तुम लोग को उसका फोटो। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू विद द फोटो। देखो डॉकर कंटेनर का जब फोटो देखोगे ना, तो तुमको पूरा कंटेनर दिखेगा, जैसे कि ब्लू व्हेल, शार्क व्हेल टाइप्स होता है ना, कि एक प्लेस पे तुम दूसरे प्लेस के ऊपर तुम जा रहे हो, है ना। पूरा की पूरा उस टाइप से चीज़ें फॉलो अप होती है। देखो ये एक वेल का शेप दिख रहा है, ये कंटेनर्स क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर तुमको शिफ्ट करता है। जैसे कि तुम्हारा पूरा की पूरा जो डेटा है, उसको अपन बिल्डअप कर दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर रख दे रहे हैं। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। सॉरी। सो यही सब हमारी जो टूल्स होते हैं, इसी टाइप के अलग अलग हमारे पास टूल्स होते हैं डेवॉप्स के अंदर, है ना। जैसे कि अपने पास पाइपलाइन बनाने के लिए जेंकिंस हो गया, है ना। फिर उसके बाद अपने पास डॉकर हो गया। इसी टाइप के अलग अलग अपने पास टूल्स होते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, क्विक स्टार्ट योर जर्नी विद डेवऑप्स। सो तुम लोगों को क्या क्या आना चाहिए, व्हाट ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड, एंड फ्लो पाथ क्या होना चाहिए, व्हाट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड। सो व्हेन यू आर व्हेन यू वांट टू
become a DevOps engineer. Okay, we are working on as a DevOps engineer. DevOps engineer बोल दो या फिर क्लाउड इंजीनियर बोल दो। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल्स होते हैं, मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो अब लेट मी शो यू द रोल्स, फिर अपन एक रोल मैप पे आते हैं। अब डेवऑप्स इंजीनियर में कैसे कैसे रोल्स होते हैं। एक आता है सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, सीनियर मतलब लेवल हो गया। अब इसमें आता है एक साइट रिलेबिलिटी इंजीनियर, साइट रिलेबिलिटी इंजीनियर एस आर ई जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। एस आर ई क्या करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसको पूरा चेक करना, व्हाट ऑल द थिंग्स वी हैव, तो ये अपना एस आर ई वाला काम करता है, ठीक है। फिर एक आता है डेव सेकऑप्स, इसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटी वाला पार्ट, मतलब जो डेवलपर है सिक्योरिटी पार्ट्स में इसको डेवसेक डेवसेक भी बोलते हैं, डेवसेकऑप्स भी बोलते हैं, मतलब अपन ने ऑपरेशन की अगर सिक्योरिटी वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसी टाइप से अपने पास क्लाउड ऑप्स होता है ना, है ना। फिर अपने पास एक गिट ऑप्स होता है, गिट ऑप्स वाला पार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी टाइप से अलग अलग काफ़ी रोल्स होते हैं डेवऑप्स के अंदर, associate DevOps engineer, associate builders. So when you start your journey, first of all they require experience, है ना। experience कब आता है, काम करने से, इंटर्नशिप छोटी मोटी, डजेंट मैटर पेड हो या अनपेड हो। आई स्टार्ट माई फर्स्ट इंटर्नशिप एज ए अनपेड, है ना। तो धीरे धीरे जैसी जैसी चीज़ें बिल्डअप होती है ना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा यू विल गेट फैमिलियर विद द थिंग्स, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जितना तुम काम करोगे, दिस इज नो कोडिंग, दिस इज नो कोडिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर दिस। बस तुम्हें थोड़ी बहुत पाइथन आनी चाहिए, दैट्स मैटर। व्हाट्स मैटर, पाइथन, यू शुड लो लिटिल बिट पाइथन, जैसे कि सिंटेक्स फिंटेक्स थोड़ा बहुत, ये मैटर करेगा पाइथन, ठीक है। पाइथन मैटर कर गई। उस चीज़ के बाद अपन को एक और चीज़ ये मैटर करेगा कि मैं इसके ऊपर काम कैसे करूँ, है ना। अब द फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर्ड, यू शुड नो द पाइथन लिटिल बिट। अगर थोड़ी बहुत पाइथन आती हो तो इट्स वर्क्स फॉर यू। वर्क फ्लो बता रहा हूँ मैं, है ना, जस्ट मैटर कर लेना दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। पाथवे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाथवे, डेवऑप्स इंजीनियर पाथवे, ठीक है। सबसे पहले क्या, पाइथन आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जावा भी आई तो चलेगा, बट यू शुड नो अबाउट द सिंटेक्स वाला पार्ट। सेकंड, यू शुड स्टार्ट लर्निंग द लिनक्स, है ना। लिनक्स मैटर्स अ लॉट, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, क्योंकि जितना भी तुम्हारा जो काम है पूरा कमांड के थ्रू होता है। देयर इज ए कमांड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए कमांड होती है, ठीक है। कमांड लिनक्स से स्टार्ट करना, यू इट विल टेक समथिंग अराउंड 15 to 20 days, है ना, 20 days के अराउंड करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन टू यू कि तुम उसको कितने डेडिकेशन से कर रहे हो एंड हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। थर्ड, लिनक्स के बाद स्टेप के बाद अपने पास आता है गिट करना, गिट हब को लर्न करना। इट्स एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। कंपनी सी योर प्रोफाइल ऑफ योर गिट हब, लेट मी क्विकली शो यू माई प्रोफाइल। तुम लोगों को गिटहब की प्रोफाइल बनाना काफ़ी ज़्यादा मतलब इट मैटर्स अलॉट। जब भी तुम रेज्यूमे बनाते हो ना, तो तुम अपनी गिटहब की प्रोफाइल मेंशन करते हो इन दैट पर्टिकुलर रेज्यूमे, एंड द कंपनी ओपन्स योर एवरी क्लाउड कंपनीज ओपन योर गिटहब एंड सी तुमने कितने कमिट्स करे हैं, व्हाट आर योर कमिट्स, एंड तुम कितने ओपन सोर्स से फैमिलियर हो, एंड कितनी ज़्यादा चीज़ें तुमने लाइफ में करी है अपार्ट फ्रॉम योर पास्ट जर्नीज। I think it's taking some time. I'm just dropping my GitHub account into the comment section. You can just go and visit my GitHub. Okay, and you can just visit. I have just done lots of commit in this and the GitHub accounts, and you can just go and step by step and see check out the things. Okay, so now, है ना। अब अपन ने क्या देख लिया, पाइथन देख लिया, गिट लिनक्स हो गया, पाथवे में लिनक्स अपन ने सीख लिया, चलो भैया ठीक है। अपन ने गिटहब भी सीख लिया, बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। अपने पास फोर्थ ऑप्शन क्या आता है कि अपन, है ना, थोड़ा सा YML एंड जेसन पढ़ ले। ये क्या होता है, ये फॉर्मेटिंग होती है, मतलब जेसन फॉर्मेट के अंदर तुम MongoDB का भी डेटाबेस देखोगे ना, तो जेसन फॉर्मेट में रहता है ना। तो अगर तुम्हें चीज़ें पढ़नी है तो ये छोटी मोटी, मतलब नॉट एक दो दिन का काम है कि उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, किस टाइप से लिखा जाता है चीज़ें। जैसे एक लैंग्वेज है, इट्स अबाउट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, ये मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वी हैव दैट इज पिकअप योर फेवरेट क्लाउड। तुमको कौन सा क्लाउड पढ़ना है, तुमको AWS क्लाउड पढ़ना है या फिर तुमको एजर क्लाउड पढ़ना है। कोई भी क्लाउड पढ़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बस जो भी पढ़ोगे गेट एफिशिएंट इन दिस, कि भाई आधी रात में कोई भी पूछ ले कोई सर्विस से रिलेटेड कि इसमें कैसे करते हैं, यू शुड
यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्विस कि हाँ आई हैव यूज दिस सर्विस, ऐसी ऐसी चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि यार मैंने थ्योरी पढ़ के छोड़ दिया। मैटर सिर्फ कि प्रैक्टिकल हमें आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये चीज़ हो गई अपने पास। दिस ये अपने 5 चीज़ हो गए। अब छठवीं एफ सी अपन पढ़ेंगे डॉकर। ठीक है, डॉकर पढ़ना शुरू करो, डॉकर एंड क्यूबरनेटिस। ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही है फॉर द डिप्लॉयमेंट पार्ट। मतलब अगर तुमको कुछ डिप्लॉय करना है ना। मैं बताऊंगा क्यूबरनेटिस हम लोग यूज़ करते हैं। जस्ट स्टार्ट लर्निंग विद दिस टू। देन सेवेंथ वी हैव पाइपलाइन टूल्स, दैट इज जेंकिंस स्लैश गिटलैब। एंड गिटहब के ऊपर भी जाएंगे पाइपलाइन वाला पार्ट अवेलेबल, सो यू कैन ऑल्सो लर्न गिटहब। गिटहब के ऊपर भी पाइपलाइन वाला पार्ट इंटीग्रेट होता है और वर्क्स करता है। देन कमिंग एट्थ, दैट इज सम टूल्स लाइक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब क्या होता है, IAC बोलते हैं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। अब इस इसको अब एक टूल होता है टेराफॉर्म, है ना। ये सारे के सारे टूल्स होते हैं। ये नाम बड़े दिख रहे हैं बट दे आर क्वाइट इजी टू लर्न एंड सब में कमांड्स वाला खेल है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, बेसिकली हम लोग कोई चीज़ पे AWS के ऊपर जा रहे हैं, हम लोग उसको मैनुअली अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहे हैं तो इट टेक्स टाइम। तो अब ये मल्टी क्लाउड के लिए काम करता है। जैसे कि अपन को एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है ना। तो अपन EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन इसको अपन एक स्क्रिप्ट लिखते हैं टेराफॉर्म की .tf के अंदर। मैं आई विल शेयर द वीडियोस, है ना। तो इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट रन करते हैं, तो वो एजोर पे भी चल सकती है, AWS पे भी चल सकती है, GCP पे, मतलब मल्टी क्लाउड स्क्रिप्ट। हमें कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो हम AWS के ऊपर जाते हैं, मैनुअली चीज़ें करते हैं, तो इट टेक्स सर्टेन टाइम्स। तो टेराफॉर्म को कहते हैं ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को। हम लोग इतने जा करके ना हम लोग वी आर जस्ट रनिंग वन स्क्रिप्ट एंड चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जा रही है। ओके, देन कमिंग टू द नाइन्थ, दैट इज टूल्स लाइक फॉर द मॉनिटरिंग्स, है ना। मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं प्रोमेथेस एंड ग्राफाना। मैं इसका भी आज अभी डेमो बता देता हूँ। प्रोमेथेस एंड व्हाट डज दिस मॉनिटरिंग टूल्स एंड ऑल दिस थिंग्स लुक लाइक। ये इसको बोलते हैं प्रोमेथेस एंड ग्राफाना, दिस इज द मॉनिटरिंग टूल्स, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू कैन आफ्टर डूइंग दिस येट यू शुड बी अ सर्टिफाइड। मतलब कोई भी एक डोमेन में कोई भी सर्टिफिकेट मैटर्स अ लॉट। अगर तुम सर्टिफिकेट करते हो तो वो चीज़ें तुम्हारे स्किल्स को बूस्टअप कर देती है एंड कहीं ना कहीं वो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे स्किल्स को दिखाती है। ठीक है, तुमने पढ़ तो लिया, हाउ यू गोना शो योर स्किल। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना इंटीग्रेट करते हुए चीज़ों को, जैसे कि जेंकिंस की पाइपलाइन को डॉकर से इंटीग्रेट करना या फिर गिटहब को इससे इंटीग्रेट करना, दिस चीज़ों को इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट्स बनाना। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, ये एक पाथवे है, यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप एंड इसका स्क्रीनशॉट भी मैं तुम लोग से शेयर कर दूंगा एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दिस रिकॉर्डिंग। मैं यूट्यूब के ऊपर इसको डाल दूंगा, तो इफ़ एनी वन मिसेस योर फ्रेंड और किसी और वापस किसी को देखना हो तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देयर अगेन दिस पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने खुद ने पर्सनली डॉकर एंड क्यूबरनेटिस पढ़ाया है ऑन माई यूट्यूब चैनल। विल शेयर लिंक्स टू यू, तो उसके ऊपर जाकर के डॉकर एंड क्यूबरनेटिस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने गिटहब भी पढ़ाई है चीज़ें एंड आई विल बी सून स्टार्टिंग विद AWS। एंड मैंने टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स दोनों पढ़ाए हुए हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे कंपनीज यूज़ कर रही है, प्रोमेथेस एंड ग्राफाना। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द पाथवे विच यू शुड गो डाउन, है ना। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चलो ठीक है यार, हम लोग ना डेवऑप्स इंजीनियर बन गए। अब व्हाट इज द रोड मैप फॉर द सर्टिफिकेशन, है ना। सर्टिफिकेशंस मैटर करते हैं क्या राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्रीज एंड व्हाट ऑल दिस मैटर। हाँ काफ़ी, तो माई आंसर इज़ यस, काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट मैटर करते हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि अपने पास अलग अलग कंपनीज के सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कि AWS का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, AWS के अलग अलग होते हैं। एक तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है ना, जो कि आई एम सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ओके, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट AWS से सर्टिफाइड हो। एक होता है सॉल्यूशन डेवलपर होता है, AWS डेवलपर एसोसिएट। दैन उसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती है AWS के, समथिंग अराउंड इट हैव, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 8 to 9 कैटेगरीज होती है एंड दे कॉस्ट अराउंड समथिंग 10K to 11K। ठीक है, इसके ये कॉस्टिंग होती है एंड ये वर्थ इट होता है काफ़ी ज़्यादा इन द मार्केट। इफ़ यू आर सर्टिफाइड पर्सन, आप दावे से कह सकते हो एंड यू कैन, इफ दे आर, इफ अगर यू हैव क्रैक द इंटरव्यू और अगर वो
6 लाख LP सपोज दे रहा है, एंड यू कैन जस्ट से कि यार मैं सर्टिफाइड पर्सन हूँ, जस्ट आई हैव अ वैल्यू इन द मार्केट ऑफ 8 LP, और यू कैन से आई हैव वैल्यू ऑफ मार्केट ऑफ 12 LP। सो वो देते हैं बढ़ा के, क्योंकि यू आर सर्टिफाइड पर्सन, सर्टिफिकेशन मैटर्स अ लॉट। ये तो AWS का हो गया। ऐसे ही रेडिट, आई एम ऑल्सो रेडिट सर्टिफाइड पर्सन, रेड हैट। ओके, रेडिट की सर्टिफिकेशन की कॉस्टिंग आती है समथिंग अराउंड 20K, वन सर्टिफिकेट। सो आई एम 2x रेडिट सर्टिफाइड पर्सन। इसी टाइप से यू कैन सर्टिफाइड, इसके ऊपर कूपन से मिलते हैं एज योर स्टूडेंट। यू कैन डू दिस सर्टिफिकेट एट 12K और समथिंग अराउंड 11K। ठीक है, ये सर्टिफिकेट तुम कर सकते हो, एंड दिस एड वैल्यूज इन योर रिज्यूमे कि तुम्हें, हाँ तुमने जो चीज़ें सीखी वो आती है। हाउ यू कैन प्रूव बाय सर्टिफिकेशन वैल्यू। जैसे कि अपन प्रोजेक्ट्स बना के, बट क्लाउड के वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हें अगर अपनी स्किल्स को शोकेस करना है, देन सेम एज इट इज़ वी हैव Azure सर्टिफिकेशंस ऑल्सो, लाइक AZ 900 एंड लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा Azure के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, एंड GCP के भी काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन होते हैं। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि ये सब करने के बाद, after learning all about your cloud part, you can start and do the certifications. This matters a lot and add your value to the market. ठीक है, so if anyone have any doubt over this, so we can have a quick 10 minutes break and anyone can ask the doubt, so we can move further. मैं तुमको थोड़ा सा डेमो प्रैक्टिकल बताता हूँ and थोड़े टूल्स के बारे में बताता हूँ मैं। If anyone have any doubt, you can just quickly ask me. एंड उसके पहले एक मिनट, ये दिस इज़ माई गिटअप अकाउंट। गिटअप अकाउंट काफ़ी मैटर करता है, यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन द गिटअप अकाउंट। और मतलब चीज़ें मैटर करती है, एंड हाउ मच प्रोजेक्ट्स यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, तुम लोग ये डिस्क्रिप्शन ऐड करके रखना कि व्हाट यू हैव ऑल हैव डन, व्हाट ऑल द टेक्नोलॉजीज यू हैव, यू कैन कनेक्ट all this repository you have. I'm been committing, like I'm having a streak of daily committing. I used to commit daily and about the projects, anything. So जैसे कि लीड कोड के ऊपर तुम लोग स्ट्रिक मेंटेन करते हो ना, या फिर हम लोग स्नैपचैट काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं, मैं खुद पर्सनली स्नैपचैट चलाता हूँ, तो उसमें हम लोग एक स्ट्रिक मेंटेन करने में मज़ा आता है। एक यार स्ट्रिक टूटनी नहीं चाहिए, फटाक से कोई स्नैप भेज दो। या फिर कोई कोई बच्चे लीड कोड के ऊपर स्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हैं। सो सेम यू कैन ऑल्सो मेंटेन, स्टार्ट मेंटेनिंग योर गिटअप कमिट्स, गिटअप स्ट्रिक्स। चाहो तो अपन लोग आई विल स्टार्ट सीरीज ऑन द यूट्यूब कि हम लोग सब साथ में आकर के गिटअप पे कुछ ना कुछ कमिट्स करें, तो एक हमारा एक नेटवर्क भी ग्रो होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग कनेक्शंस। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, व्हेन यू गो टू द कंपनीज, तुम्हारा गिटअप प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, एंड यू कैन कमिट्स एंड ऑल योर प्रोजेक्ट्स। अब हम लोग, लेट मी जस्ट गिव यू क्विक ब्रीफ इफ एनीवन डोंट नो अबाउट द गिटअप, व्हाट इज द गिटअप। गिटअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा टूल है कि वेयर यू कैन पुश योर कोड। ओके, कोड को तुम अपना पुश कर सकते हो। अब क्या होता है, लेट मी जस्ट क्विकली कंप्लीट दिस एंड विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स लाइक फॉर द पार्ट। सो कोड के अंदर क्या होता है कि अब तुमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। ओके, अब प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर तो यू कैन कैरी योर लैपटॉप एनीवेयर। सपोज तुम अभी एक इंडिया में बैठे हो, है ना, यू आर इन द इंडिया राइट नाउ, एंड यू वांट दिस पर्सन इन द USA टू, तुमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया, लाइक फुल स्टैक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एंड यू वांट दिस पर्सन टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट, है ना। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या करता है, या फिर सपोज तुम्हारा लैपटॉप करप्ट हो गया, लैपटॉप भी करप्ट हो गया, तो तुम्हारा कोड तो चले जाएगा यार, ये तो मैटर ही नहीं करेगा। तो तुम लोग तो बोले यार मैं इतनी मेहनत से कोड बनाया है, इतना सब यार करा है, तो ये कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल करना चाहिए ना। तो इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, गिटहब के ऊपर हम लोग पोस्ट कर देते हैं कि अगर हम लोग दुनिया के कोई भी कोने में रहे, मतलब इफ़ यू आर इन USA, इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब दुनिया इंडिया में कहीं भी रहो, चेन्नई में रहो या दिल्ली में रहो या नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो वो चीज़ को तुम कहीं से भी कमिट कर सकते हो। ठीक है, इफ़ आई शेयर पर्सन रिपोजिटरी टू यू, तो तुम उसको देख सकते हो, एंड यू कैन कमिट अकॉर्डिंग टू योर साइड। ओपन सोर्स में क्या होता है, जनरली लेट मी गिव यू, टेल मी अबाउट ओपन सोर्स पार्ट। तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि, एक मिनट, ओके या, तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि जैसे कि आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट। ओके, आई वुड, मुझे अब मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग कमिट करो, उसके अंदर कुछ फीचर्स चेंजेस करना चाहता हूँ। दिस इज माय लोकल वेबसाइट एंड आई जस्ट वांट एवरीवन शुड कमिट एंड मेक चेंजेस। तो इसी को ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, मतलब किसी ने कुछ चीज़ बनाई है एंड इट इज़ ओपन टू ऑल, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट, एवरीवन कैन इम्प्लीमेंट सम चेंजेस उसके अकॉर्डिंगली, एंड यू कैन हैव अ पुल रिक्वेस्ट। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। when you go to the industry and when you join, you आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी कॉलेज के अंदर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों के, लाइक क्लास में ज्वाइन होना, देन ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना,
इसी टाइप से कि लर्निंग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, लाइक आजकल एआई बहुत आने लगा है, इसके ऊपर ब्लॉग्स डालना, वीडियोस बनाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. सो गिटहब इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा चीज़ एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है. दिस इज अवर सेंट्रलाइज रेपोजिटरी वेयर वी कैन पुश अवर ऑल अवर कोड्स एंड वी कैन check out the things. So this it's for this, and किसी को कुछ डाउट हो तो you can ask me. uh, let's have a quick 5 minutes 2 minutes break and then we can move to the further part. किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो you can just ask me in the comment section. खुशी, फॉर अपलोडिंग डेटा या फॉर द प्राइवेट क्लाउड वी नीड टू पे फॉर इट. मतलब एक ओपन स्टैक करके क्लाउड होता है. ओके, तो ओपन स्टैक क्लाउड के अंदर चीज़ें क्या होती है कि आई हैव माई सीरीज ऑन द यूट्यूब. मतलब ओपन स्टैक हमें बनाना पड़ता है, हमें उसके लिए फिजिकल रैम एंड हमारा खुद का एक क्लाउड रहता है. तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पेमेंट और पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है. तो इसके लिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं. एंड इफ़ यू हैव बजट, इफ़ यू आर इन द इंडस्ट्रीज, सो यू कैन क्रिएट योर ओन प्राइवेट क्लाउड ऑल्सो. Anyone have any doubt? More doubts, you can just ask me. We are just waiting for quick more 5 minutes, and we will resume. आई थिंक हमारी ऑडियंस थोड़ी ज्यादा ही शर्मीली है. यार ऐसा मत रखो. लेट्स हैव ए इंटरेक्टिव सेशन. मतलब मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा कि वन बाय वन हो. एनी ओपन डाउट्स, यार ओपन टू ऑल. मतलब ऐसा मत समझो कि वी आर जस्ट प्रोफेशनल, वी आर जस्ट अ लर्निंग स्टूडेंट. जो भी डाउट हो यू कैन जस्ट ओपनली आस्क, विल हेल्प यू आउट. क्योंकि वी वांट टू एक्सप्लोर इन द कॉलेज ओनली, क्योंकि कॉलेज के बाद हम लोग तो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं. सो इट्स राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म. आई विल हेल्प यू. कुछ डाउट हो या इफ़ यू वांट टू न्यू समथिंग, सो लेट मी नो एनीथिंग स्पेसिफिक. यार एक ने डीएम किया है मेरे को कि हाउ टू गेट इंटर्नशिप एज अ क्लाउड इंजीनियर. तो देखो उसके लिए नथिंग एज मच. मैं जो रोड मैप बताया था कि लेट मी क्विकली शो यू कि ये सारी चीज़ें हमें शुरू पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. अब जैसे थोड़ा बहुत गिटहब पढ़ लो, लिनक्स पढ़ लो, डॉकर क्यूबरनेटिस पढ़ लो, जेंकिंस पढ़ लो. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो लर्निंग्स, एडब्ल्यूएस पढ़ लो एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग इन द कंपनीज. काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म से मैं बताता हूँ, एक हायरिस करके प्लेटफॉर्म होता है. हेलो। uh, हाँ. या. हाँ शिवांश. यस शिवांश. सर मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, हाँ. तो क्लाउड कंपाउंडिंग सीखूं या ना सीखूं, ये पूछना था सर। शिवांश देखो क्या होता है, मैं सीरियस बताऊँ. कि अगर तुम है ना भीड़ से थोड़ा अलग होना चाहते हो, राइट. मतलब क्या होता है कि तुम्हारे जो साथ वाले 80 to 90% सब वेब में घुस रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू मतलब अलग होना, मतलब नॉट अलग कि एक तुम्हें अपने आप के स्किल्स को डेवलप करना. अगर तुम 100 लोगों में बैठ रहे हो, ठीक है, अगर सबको वेब भी आता है और तुमको क्लाउड आता है, तो कहीं ना कहीं तुमको प्रायोरिटी दी जाती है. तो एक्स्ट्रा स्किल्स मैटर करते हैं एंड क्लाउड मैटर करता है राइट नाउ इन द इंडस्ट्री. सर अभी मेरा एमसीए फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ है। हाँ. तो अभी मतलब मैं वेब डेवलपमेंट ही करने की सोच रहा हूँ, वन स्टैक। हाँ. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले इंटर्नशिप या जॉब वगैरह ले लूँ, उसके बाद क्लाउड इंजीनियरिंग साइड जाऊँ। वैसा भी कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट पैरेलली पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या होता है इतनी जल्दी हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है इंटर्नशिप की. लाइक इट्स लुक बट कहीं ना कहीं जो भी तुम डोमेन में देखोगे ना, क्योंकि आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपर के ऊपर मतलब तुम्हें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. आई हैव पर्सनली सीन, मैंने खुद इंटर्नशिप करी है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो सो चूज़ यूर साइड वाइजली. तुम्हें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्लाउड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर फुल स्टैक, या किस में इंटरेस्ट हाउ आ रहा आई गेट एंट्रेंशिप सर? है. अप्लाई करना स्टार्ट करो.
मेक योर रिज्यूमे, मतलब तगड़ा रिज्यूमे बनाओ, और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से जैसे इंटर्नशाला हो गया, हाईरिस्ट हो गया, इंस्टायर हो गया, वेल फाउंड हो गया, इस पर अप्लाई करना स्टार्ट करो एंड यू विल गेट स्टार्ट गेटिंग कॉल्स। ओके सर, मैं पर्सनली कांटेक्ट करता हूँ आपको ठीक है शिवांश। अपनी क्लास के बाद। हाँ फिर आप हाँ मुझे थोड़ा गाइडेंस कर देना। ठीक है। ठीक ठीक सर। No, no, Aryan, I'm so sorry if I am pronouncing your name wrong. I'm so sorry. No, like for the cloud computing, they don't ask for the DSA. Seriously, like I have been interviewed more than 50 companies, more than 50. I've been so वो लोग DSA नहीं पूछते क्लाउड कंप्यूटिंग के, अगर if you are rolling the DevOps part, वो तुमको एक छोटा सा टास्क देंगे एंड फॉर द CI/CD पाइपलाइन बनानी हो, कुछ भी छोटा सा टास्क देते हैं एंड यू हैव सर्टेन 3 to 4 days and you have to do this particular task into the particular days के according. So कोई DSA राउंड नहीं होता है, नथिंग इज आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर राउंड, और तुम्हें सारे टेक्निकल क्लाउड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिनक्स के ऊपर। Khushi, nowadays he is so in the cloud any space for you? Oh yeah, like Khushi, what is happening if you want to uh, run something, if you want to, I can say AI के अंदर हमें ट्रेन करना पड़ता है मॉडल को, सो क्लाउड की हमें चीज़ें ऐसी स्टार्ट होगी। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ कंपनी विच इज़ यूजिंग देयर AI। सो AI एक टूल हो गया, बट उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लाउड यूज होता है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, काफका करके टूल होता है, ओके। तो काफका टूल क्या करता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर्स आ रहा है उसको बिल्डअप करना है ना, उसको प्रेडिक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसके पीछे पूरा की पूरा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है। एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर के ऊपर तुम लोग पूरा की पूरा चीज़ें यूज कर रहे हो, उसको डिप्लॉय कर रहे हो, उसको मॉनिटर कर रहे हो चीज़ों को कि ये चीज़ सही चल रही है। मैं भी वही बताऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मॉनिटर ऑल दोस पर्टिकुलर पार्ट। सो या देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर द AI इन द क्लाउड। लाइक एक लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल। तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, आई एम जस्ट कमिंग टू पॉइंट्स पंडित, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब तुम कोई वीडियो देखते हो तो सबटाइटल आता है, राइट? है ना? तो सबटाइटल क्यों आ रहा है? उसके पीछे AWS की सर्विस होती है ट्रांसक्राइब करके, है ना? तो AWS की सर्विस जो होती है ट्रांसक्राइब सर्विस, वो पूरा की पूरा इस चीज़ पे काम करता है। अगर एक ये अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, दिस इज द रिकॉर्डिंग एंड दिस इज द वीडियो गोइंग ऑन, दिस इज द लेक्चर गोइंग ऑन, एंड इफ यू वांट कि मेरे को उसका पूरा की पूरा समरी मिल जाए, व्हाट मतलब क्या क्या बोला गया है, तो वी हैव सर्विस बाय द AWS प्रोवाइडेड विद एज अ ट्रांसक्राइब, एंड तुम उसके अंदर वीडियो डालोगे, यू विल गेट ऑल द नोट्स एंड ऑल द रिटर्न इन द रिटर्न फॉर्मेट, दिस पार्ट। Currently I'm doing well with few tiles. Yeah, Pandit, Edge is one of the followers which is just start contributing into the more in the open source opportunity। मतलब जितना ज़्यादा contribution करोगे इतना ज़्यादा तुम्हें knowledge मिलेगा। I have not contributed much into the MLH। मैं थोड़ा सा Reddit side में ज़्यादा था, and so I have just cracked more onto it, but just connect me on once on the LinkedIn. I have some network. I will just share you the contact number, so you can just ask जिसने क्रैक किया, like I have my few friends जिसने क्रैक किए, so I will just share them your numbers। इसलिए लाइक मतलब हाँ, क्लाउड के ना अलग अलग स्टोरेज लेवल्स होते हैं। अगर जैसे कि S3 होता है, S3 ग्लेशियर होता है, S3 आर्चिव होता है, ऐसे अलग अलग काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के लेवल्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुमको किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, तुम फाइल्स कर रहे हो या फिर तुम चीज़ें क्या क्या स्टोर कर रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। और हर सर्विस का पर्टिकुलर चार्ज होता है, ओके। इफ़ यू आर यूजिंग दिस सर्विस, मतलब कुछ पर डॉलर 0.01 रुपीज़ चार्ज करता है, तुम्हारे यूज़ केस के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टोरेज लेवल की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, दिस मैटर्स। Guys, any more doubt to anyone? All right, Pandit. I will just share some contact number of mine, which have shared. So, if anyone have doubts, let's have a quick. How will you get rating? Which Khushi, this is not my rating. Like I usually started using AWS only from the starting of the beginning. So I love AWS cloud a lot because I have started my career and I have got my first internship in AWS. So AWS I love a lot, but I can't give rating. Both of the clouds are, देखो क्या होता है, अगर मैं कोई दूसरी कंपनी में गया एंड दे आर यूजिंग GCP क्लाउड, सो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है कि कौन सा क्लाउड वो यूज़ करे। सो हमें अकॉर्ड देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों का सेम है,
बस नाम अलग है, EC2 AWS में भी, GCP में भी, Azure में भी है, पर तीनों के नाम से अलग है, बस सिंपल, नथिंग एल्स, बाकी सब चीज़ें सेम है। ऑलराइट, सो छोटी सी आज हम लोग थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, है ना, क्विक डेमो की चीज़ें क्या क्या होती है, एंड थोड़ा सा लिनक्स के बारे में, एंड अबाउट द प्रोमेथेस, एंड थोड़ा सा क्यूबरनेटिस के बारे में। तो एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, मैं आई विल जस्ट सेंड द माय यूट्यूब चैनल लिंक, तो तुम लोग उसके ऊपर जाकर के और मोर डीप डाउन देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई है, एंड मैं डेली पढ़ाता हूँ, मतलब उसके ऊपर डालता हूँ, तो यू कैन जस्ट फॉलो और देयर, है ना, क्यूबरनेटिस पढ़ा है, डॉकर पढ़ा है, गिटहब पढ़ा है, ठीक है। सो अपन लोग अब नेक्स्ट एक डेमो पे आते हैं, है ना, वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थ्वेरी, अपन लोग थ्वेरी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर लिया है। अब वी आर जस्ट शिफ्टिंग टू द लिटिल बिट अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट। सो देखो अब क्या होता है कि लेट मी क्विकली ओपन माय फोल्डर, या ग्राफाना डेटा। सो हेलो हाँ, हाँ शिवांश। सर, मैं ये पूछा अपनी वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? हाँ, वर्कशॉप को मिलेगा सर्टिफिकेट। जी। आप करंटली करंटली क्या कर रहे हो अभी ये? डेवऑप्स इंजीनियर में काम करता हूँ, विच कंपनी? कॉन्स्टेंस एआई। रिमोट या वर्क फ्रॉम? रिमोट है रहता हूँ। अच्छा, राइट नाउ आप भोपाल में ही रहते हो क्या? नहीं, आई एम नॉट इन द भोपाल राइट नाउ। बीटेक बीटेक ही किया आपने भी? हाँ शिवांश। एलएनसीटी से ही? हाँ एलएनसीटी। ठीक। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखो जनरली क्या होता है अपने पास कि अपने कोई कोई फोल्डर बनाना है ना, तो अपन फोल्डर बनाते तो अपन कैसा करते, लाइक मोस्ट ऑफ देम नो, बट जिसको नहीं पता, वी आर गोइंग फॉर वेरी बेसिक्स पार्ट राइट टुडे। तो देखो जिसको फोल्डर बनाना हो तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, न्यू में जाते हैं, एंड वी आर गोइंग डूइंग दिस पूरा की पूरा मैनुअली, जैसे कि अपने फोल्डर बना रहे हैं वर्कशॉप करके, है ना, वर्कशॉप करके अपन एक फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा अपना पूरा मैनुअली काम हो गया, बट मैं क्या चाहता हूँ यार, ये इतना मैनुअली ना जा करके, इतना मैं इतना अंदर फोल्डर गया, ई में गया, फिर क्यूबसीटीएल में गया, इतना मैनुअली ना जा करके मैं ये पूरा की पूरा काम एक कमांड लाइन प्रोम के थ्रू करूँ, है ना। तो वी आर यूजिंग अ गेट बैश ओवर हियर, है ना। सो माय गेट बैश इज ओपनिंग। तुम लोग गेट बैश क्या होता है, अपने पास दो चीज़ें होती है, ऋषभ कैन यू जस्ट म्यूट, आई थिंक देयर इज सम वॉइस कमिंग। Yes. थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने मैनुअली गए एंड वी हैव जस्ट क्रिएटेड फोल्डर। तो ये सब चीज़ें कैसी रहती है यार, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अपन लोगों के लिए। तो दो टाइप की चीज़ें होती है, एक तो जीयूआई होता है और एक सीएलआई होता है। तो जीयूआई मतलब ग्राफिकल इंटरफेस, एंड एक सीएलआई होता है मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, है ना। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, जीयूआई मतलब तुम ग्राफिकली मतलब जा रहे हो माउस लेकर के वहाँ पर चीज़ों को, ठीक है, और फिर सब चीज़ें वर्क कर रहे हो। तो वो सब चीज़ में क्या होता है, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, वी डोंट हैव टाइम कि यार हम लोग इतनी पर्टिकुलर चीज़ों पे जाए एंड वी स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। सो कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है। ओके, सो अब लेस डी आई आर, ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली गो टू माई फोल्डर क्यूबसीटीएल। ठीक है, अपन क्या है कि जहाँ पर अपन लोग है CLR, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है ना। तो अपने को है ना फोल्डर्स चेक करने की कौन कौन से यहाँ पे फोल्डर्स है। तो देयर इज ए कमांड टू चेक, हम लोग कमांड प्राइम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करें। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग ग्राफिकली इधर गए थे एंड वी हैव डन दिस पार्ट, ठीक है। अपन ग्राफिकली इधर गए थे एंड वी हैव डन दिस पार्ट। सो अपने को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर्स है। सो देयर इज ए कमांड ls।
तो जैसे ही तुम ls करते हो तुम्हारे पास पूरी लॉन्ग लिस्ट आ जाती है और व्हाट ऑल द फोल्डर्स यू हैव इन दिस पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्टरी. आई थिंक इट्स क्वाइट रनिंग स्लो, लेट मी यूज cmd ओनली. ठीक है, और लेट मी यूज cmd ओनली, इट्स क्वाइट बेटर. सो अगर तुम्हें कोई भी फोल्डर करना है, देखो कमांड वेरी टू वेरी करती है. अगर CLI यूज करे तो देयर इज अ कमांड dir, और अगर GUI यूज करे तो देयर इज ए, इफ यू आर यूजिंग git bash तो देयर इज अ कमांड ls, है ना. अपने को फोल्डर चेक करना है, ठीक है. अपन ने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे, क्या नाम से फोल्डर बनाए हुए, GitLab ग्राफाना सर्विस करके, है ना. ग्राफाना डैशबोर्ड करके अपना एक फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे ग्राफाना डेटा करके. and if you see there will you will find a folder as a grafana service. I think we are in the wrong folder, yeah. तो जैसी 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 यहाँ पे dir करोगे यू विल गेट ऑल द थिंग्स व्हाट ऑल द फोल्डर्स वी हैव, और ये कब कब बने हैं. हम लोग CLI कमांड फ्रॉम इंटरफेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इजीली इंटरफेस दे रहा है कि हमें इतना मैनुअली जा करके देखना नहीं पड़ेगा कि यार ये फोल्डर ये फाइल कब कब बनी है, ये फाइल ये तारीख को बनी है, इतने बजे बनी है ना. तो अपने लिए क्या होगा, काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया कि यार ये पर्टिकुलर फाइल है, ये फाइल इतने बजे बनी है, इतने ये पर्टिकुलर टाइम पे. तो अपने लिए क्या हो गई, चीज़ें कहीं ना कहीं ईजी हो गई, कहीं ना कहीं चीज़ें अपने लिए शॉर्ट एंड हो गई. अब देखो अपन ने अब ये अपन ने ये अपनी डायरेक्टरी है ना. डायरेक्टरी मतलब फोल्डर. इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, अपन ने अभी 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 अपडेट करा हुआ है, लाइक टुडे स्टैंड एंड एट 9:20 है. तो अपने पास क्या होगी, डायरेक्टरी होगी, अपन ने इसके अंदर ऑलरेडी वर्क किया हुआ है. सो अगर अपने को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है तो देयर इज ए कमांड है cd, एंड अपन जाना चाहते हैं ग्राफाना डायरेक्टरी में, है ना. तो देयर इज ए, ये अपने पास कमांड हो गई cd ग्राफाना डेटा, आई एम सो सॉरी, है ना. तो अपन cd मतलब चेन डायरेक्टरी, अपन कहाँ आ गए, ग्राफाना के अंदर आ गए. और अगर इसको वापस dir करोगे सो अपन ने रिसेंटली एक फोल्डर बनाया था वर्कशॉप करके, राइट. तो अपन यहाँ से भी एक और फोल्डर बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, mkdir से, mkdir, और एक और अपन वर्कशॉप बना लेते हैं जैसे कि mlsa की, mlsa. तो जैसे अपन ने हिट एंटर करा तो अपने पास एक और फोल्डर बन गया. अपने को चेक करना है कैसे, तो सेम dir करके, मतलब dir क्या करेगा, लिस्ट कर देगा और कौन कौन सी फोल्डर्स एंड क्या क्या डायरेक्टरीज वी है. तो जैसे अपन हिट एंटर करेंगे तो ये अपने पास ये MLSA का अपने पास फोल्डर आ गया. अब अपन ने क्या करा, अपन ने पूरा कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करा. अगर यहाँ पे जाओगे एंड ग्राफाना डेटा के अंदर गए तो यहाँ पे देखो MLSA करके फोल्डर आ गया. सो दिस ऑल थिंग्स मैटर. यही सब चीज़ें हमारे पास लिनक्स में होती है. आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक ओवरव्यू कि इस टाइप से हमारे पास कमांड होती है क्रिएट करने की, नॉट ओनली अबाउट द क्रिएशन पार्ट, ठीक है. लेट मी जस्ट क्विकली, ओके. सो नॉट ओनली अबाउट द क्रिएशन पार्ट, लाइक दिस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमांड्स होती है, जैसे कि एक ls कमांड हो गई, ठीक है, cd कमांड हो गई, mkdir कमांड. ये स्मॉल लेवल कमांड्स है. अब बड़ी बड़ी अगर कमांड्स में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे पास 1000 फाइल्स है ना. अब 1000 फाइल्स में से तुमको कोई सर्टेन पर्टिकुलर फाइल्स के बारे में सर्च करना है, जैसे कि hello.txt. अब तुम मैनुअली तो जाके करोगे नहीं ना, लाइक अपने पास एक फोल्डर है, तो अपने पास 1000 फाइल्स है, उसके अंदर अपन मैनुअली चाहते हैं कि hello.txt कौन सी फाइल है. सो उसके लिए एक सर्टेन कमांड्स होती है, जैसे कि फाइंड कमांड हो गई. सो अपन फाइंड कमांड लिखते हैं एंड वी राइट दिस hello.txt और फिर अपन ग्रैप लगा देते हैं कि किस फोल्डर के अंदर है. सो इसी टाइप से चीज़ें वर्क करती है लिनक्स के अंदर, कि अगर तुम्हें कोई यूज़र बनाना हो या फिर तुम्हें कोई वेब पेज डिप्लॉय करना हो या कुछ चीज़ें तुम्हें करनी हो, तो इस टाइप से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है. हम लोग इसका डेमो प्रैक्टिकल लाइक AWS के ऊपर देखेंगे कल. आई विल, मतलब मैं मेरी टीम को बोलूँगा यू विल गेट सम लिंक्स टू वॉच, मतलब कुछ सर्टेन 3 to 4 लिंक्स रहे, मैं मेरी टीम को भेज दूंगा. माई टीम विल सेंड टू यू ऑन द ईमेल. सो अपना ईमेल चेक कर लेना एक बार कल से सेशन से आने से पहले वो वीडियो को एक बार विजिट कर लेना. सो यू विल गेट सम ओवरव्यू कि हाँ इस टाइप से चीज़ें वर्क होती है. वी विल रिक्वायर टुमारो वी विल रिक्वायर जेंकिंस. हम लोग कल जेंकिंस पे काम करेंगे, ठीक है. हम लोग कल AWS यूज़ करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. AWS के बाद हम लोग EC2 मशीन भी यूज़ करेंगे AWS के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ समथिंग अबाउट द GitHub, है ना, जिसके ऊपर हमारा कोड रहेगा. सो दिस ऑल आर द 3 to 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द टुमारो ज़ैमो प्रैक्टिकल. कि हम एक हमारे पास प्रोजेक्ट है, आई हैव वन प्रोजेक्ट Django ऐप करके, हम उसको डिप्लॉय करेंगे. वी आर गोइंग टू डिप्लॉय onto the AWS EC2 machine, and you can also access that particular ऐप फ्रॉम एनीवेयर. मैं बताऊंगा पब्लिक IP प्राइवेट IP के थ्रू हम लोग उस चीज़ को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट मी क्विकली शो यू
I think yeah, so let me quickly show you one more thing. I was talking about the Prometheus and the Grafana, about the monitoring tools. अब ये क्या करता है मॉनिटरिंग टूल में, क्या होता है कि दिस इज क्वाइट हाई लेवल सिनेरियो, जस्ट पुट इन योर माइंड कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है. अब अपने पास अपना एक लैपटॉप है, ठीक है. अब लैपटॉप के ऊपर अपन क्या करते हैं, जैसे वेबसाइट को अपन डिप्लॉय करते हैं तो अपन लोकल होस्ट पे चलाते हैं, है ना. अब अपन देखते हैं कि यार ये कैसी चल रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये डाउन तो नहीं हो गई, ये कितना सीपीयू का परसेंटेज यूज़ कर रही है. अपने पास एक टास्क मैनेजर होता है ना. तो टास्क मैनेजर के अंदर पर क्या करते हैं कि ये कितना सीपीयू यूज़ कर रही है, राइट. अब ये कितना रैम यूज़ कर रहा है ना. तो अपने पास परसेंटेज वाइज चीज़ें आती थी. ये सपोज सीपीयू अपना 70% अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा है, रैम अपना 60% रैम अपनी यूज़ हो चुकी है. तो अपने पास ये परसेंटेज वाइज आ जाता है कि अपन कैसे देख रहे हैं. एक वी हैव सर्टेन टास्क मैनेजर एंड इनटू अवर लैपटॉप्स. बट सेम चीज़ अगर हमें इंस्टेंस लेवल पे देखनी है, हमारे डेवऑप्स वर्ल्ड में देखनी है, तो देयर इज अ टूल, मॉनिटरिंग टूल्स एज वन इज प्रोमेथेस एंड अनदर इज ग्राफाना. ठीक है, ठीक है. ये दोनों होते हैं अपने पास मॉनिटरिंग टूल्स, जो कि हमको हेल्प करते हैं मॉनिटर के हमारे इंस्टेंस के बारे में टोटली. हम इसके अंदर पूरा की पूरा डैशबोर्ड बना होता है कि किस तरह से चीज़ें वर्क होती है. यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल, पूरा की पूरा प्लेलिस्ट है. ओके, सो लेट मी क्विकली शो यू विद द थिंग्स. ठीक है. अब मैं बताता हूँ तुम लोग को. kubectl get svc -n monitor. ये जो होता है, ये जो कमांड है, दिस इज ऑल अबाउट kubernetes कमांड. डोंट फोकस ऑन दिस कि मैं क्या क्या कमांड रन कर रहा हूँ. दिस विल कंफ्यूज यू. आई एम जस्ट गिविंग यू वन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब किस टाइप की चीज़ें आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू ये रियल सिनेरियो से कैसे डील करती है. ठीक है, रियल इंडस्ट्रीज के हम लोगों कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं. सो दिस टेक सम टाइम, just a few seconds, so let's wait for just another minutes. Till now let me just quickly okay, so Grafana, I'm just showing you this all about totally working experience like real industries workflow. चीज़ें किस टाइप से काम कर रही है इंडस्ट्रीज में एंड हाउ द फ्लोज गोज डाउन. सो लेट मी क्विकली show you with my processing. This is a cowl, this is a Jenkins, things been working. And let me quickly show you about the Grafana and Prometheus also. I think yeah, Prometheus dashboard I have, I think unable to connect. I think there is some issue nothing. Okay, so it's taking some time. तो रियल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये सारी चीज़ें रियल मतलब प्रोडक्शन के ऊपर लाइव हो रहा है. आई एम जस्ट शोइंग यू द रियल यूज केस हाउ दिस थिंग्स आर बीन वर्किंग. सो ये हमारे पास टूल्स होते हैं. काफका एक टूल्स होता है जो कि मैसेजेस आते हैं. दिस इज द फैचिंग डेटा, मतलब हमारे पास एक काफका क्या होता है, हमारे पास एक मैसेज आ रहा है क्यू के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे पास रनिंग हो रही है. दिस इज़ द हाई लेवल. ये हमारे इसके पीछे पूरा की पूरा एक एआई यूज़ हो रहा है. एआई में क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है. ओके, देयर इज मैसेज कमिंग, तो इसके ऊपर कंज्यूमर ग्रुप्स रहता है. ये सब हमारे पास टॉपिक्स क्रिएट होते हैं. वी यूज टू डील विद दिस थिंग. आप जैसे डेवऑप्स में आते हो, एंटर करते हो, यू गेट स्टार्टिंग इनटू दिस लर्निंग दिस थिंग्स एंड यू विल गेट फैमिलियर विद इट. ठीक है, हम लोग जेंकिंस को ओवरव्यू देख लेते हैं कि जेंकिंस के ऊपर जॉब्स कैसे किस टाइप से चीज़ें रन होती है, बिल्ड होती है. ओके, so my Jenkins is getting login. Just hold for few seconds. So this is the overview of the Jenkins कि Jenkins किस टाइप से चीज़ें रन होती है and what all the things run over in the Jenkins. I think it's taking quite time. ठीक है, तो इस टाइप का जेंकिंस का ओवरव्यू रहता है. एंड दिस इज़ द हम लोग किस टाइप से इसको चीज़ों को गिटहब कॉमन प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं, और किस टाइप से हम लोग चीज़ों को बिल्ड करते हैं ट्रिगर के साथ. ठीक है, सो ये सब जैसे कि हमको टोकन देना पड़ता है. ओके, एंड देन वी ऐड विद द सम अबाउट द रेपोजिटरी यूआरएल्स ऑल दोस पार्ट. सो अब
ये चीज़ मैंने क्या बताई तुम लोगों को, जैसे ही हमारे को कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं, ओके वी गेट सर्टेन चेंजेस, ऑटोमेटिकली जेंकिंस के अंदर ट्रिगर बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके सो जैसे कि देखो यहाँ पे अभी रिसेंटली एक जॉब रन हुई थी है, इस टाइप की चीज़ें हमारे पास जेंकिंस की तरफ वर्क करती है, दिस इज द रियल सिनेरियो बेस्ड चीज़ है। अगर सपोज इफ़ यू वांट टू सी, जैसे कि मैंने बताया था जेंकिस हमारा ऑटोमेशन काम इजी कर दे रहा है ना। जैसे ही कोई सडन चेंजेस होता है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रिगर होती है चीज़ें, एंड यू कैन चेक द आउटपुट वाला पार्ट। ओके एंड दिस build helping console has been successfully run, and you can see the इसके लिए बस हमें कोई थर्ड पर्सन नहीं लगता है, वी आर ऑन देयर डेवलपर्स, वी आर जस्ट चेकिंग द थिंग्स, एंड इफ द थिंग्स गेट सक्सेस वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय हो जाती है। तो हमें हमारा मैनुअल स्टेज वाला काम काफ़ी ज़्यादा इधर कम हो गया, एंड जस्ट वी आर जस्ट बिल्डिंग स्टेप इनटू द ऑटोमेशन पार्ट लाइक दिस। ये हमारा ग्राफाना का डैशबोर्ड है, इट्स लोडिंग, जस्ट वेट। ये हमारा ग्राफाना का डैशबोर्ड है। सो डोंट कैन कंफ्यूज, ये हमें ये दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो नोड है वो कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन, रैम यूटिलाइजेशन दे रहा है। मतलब कि अपने पास अलग अलग सिस्टम है जो कि AWS के ऊपर रन हो रहे हैं। सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ डैशबोर्ड, दिस इज द कंपनी डैशबोर्ड। ओके कि प्रोडक्शन के अंदर एंड चीज़ों के अंदर किस टाइप से चीज़ें रन होती है, दिस इज ऑल आर आई एम जस्ट शोइंग यू कि देखो ये पर्टिकुलर नोड कितना यूज़ कर रहा है, दिस इज पर्टिकुलर नोड हाउ मच दिस पर्टिकुलर नोड इज यूजिंग। सो ये पूरी की पूरी चीज़ें कंपनी में इस टाइप से रनिंग होती है। वैन यू एंटर इन टू द डेवॉप्स वर्ल्ड, ये पूरा मॉनिटरिंग वाला टूल्स होता है, एंड यू नीड टू मॉनिटर कि कोई कितने बजे डाउन हो गया, सपोज लाइक शाम में 6:30 ये सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब 93% हुआ कि क्या हुआ, तो हमें इससे चीज़ें पता चलती है। दिस इज अ थिंग्स विच कंपनी यूजेस इन देयर रियल टाइम, आई एम जस्ट शोइंग यू विद द रियल टाइम सिनेरियोज, एंड दिस ऑल दिस वर्क्स लाइक दिस। तुम अलग अलग डैशबोर्ड बना सकते हो फॉर द रैम, फॉर द जीपीयू यूटिलाइजेशन, फॉर द लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन। ओके जैसे कि अगर स्टोरेज का देखना तो स्टोरेज की भी हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड लाइक दिस। जैसे कि ये देखो इसके अंदर जो है एकदम सडनली पीक पकड़ा है, पीक एंड दिस स्टोरेज एकदम हाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ होगा इस वजह से, एंड वी गेट टू नो कि अच्छा ये पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, क्यों होती। तो ये सब हम लोग फिगर आउट करते एज ए डेवॉप्स इंजीनियर, क्योंकि वी आर द ऑटोमेटर एंड वी आर द डेवॉप्स पर्सन, वी नीड टू फिगर आउट विद द थिंग्स। सपोज एंड दिस इज जेंकिंस जॉब। ओके अब जेंकिंस जॉब में क्या हुआ कि कोई पाइपलाइन फेल हो गई, ठीक है। अब ये पाइपलाइन फेल हो गई, अब ये पाइपलाइन क्यों फेल होती है, अब यू हैव दिस इज अ वन टाइम सेटअप, बट पाइपलाइन क्यों फेल होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ता है यार, ये जो है ये इतने बजे बिल्ड हुआ था, ये क्यों फेल हो गया। सो यू जस्ट नीड टू गो टू द कंसोल आउटपुट एंड यू जस्ट नीड टू चेक कि यार क्या इशू आया था। तो यू जस्ट चेक विद द इशू कि यार ये चीज़ें हैं, ओके फेल्ड इज अ फेलियर, क्यों, क्योंकि एंड यू हैव टू गेट बिहाइंड द एंड यू हैव टू ट्रबल शूट, नो वन गोना हेल्प यू, यू आर ओनली देयर डेवॉप्स पर्सन, आप आपका एंड पे देखते हो चीज़ों को एंड यू जस्ट फिगर आउट, क्योंकि आपको एट द एंड प्रोडक्शन के अंदर चीज़ों को सही करके दिखानी पड़ती है। So this was a quick overview of the real-time scenarios, and a little bit about the Linux commands also, and we'll see more about the tomorrow in the more interesting practicals also. And that's it for the today's session. If anyone have quick queries, किसी कुछ doubt हो, you can just ask me on the ask, and otherwise in the few minutes we'll close the session. Over to you, Rishabh. Okay, guys, इससे आगे कुछ पढ़ें। I am sending attendance link for today's session. Do fill it and ट्राई करना जेन्यून रहने का, लाइक किसी और को शेयर ना करना ऐसा। तो किसी को अगर कुछ भी डाउट है, देन यू कैन आस्क हिम, वी आर वेटिंग हियर। Uh, Until then you can fill the form. and we will send this share links on the YouTube also, so if anyone misses, or your friends or your colleague, and if anyone wants to again see this, so you can just watch out on those particular YouTube also. We'll send you the link, session link on for the YouTube. Rishabh will send you to the email. Yeah. किसी कुछ डाउट है तो you can just have quickly ask me, otherwise we'll wrap up and just have a weekend and you can
I guess किसी को कुछ डाउट नहीं। एवरीवन इज क्लियर विद द थिंग्स, क्या क्या पढ़ा है? सब एक्सपर्ट बन गए मतलब क्लाउड में, मेरे को पीछे छोड़ने वाले हैं। या अच्छी ऑडियंस है हमारी, एक बार में चीजों को उसने ग्रैप्स कर लिया सारी चीजें। चलो फिर तो बढ़िया है, मतलब सबको एक्सबॉक्स मिलने वाला है अब तो। ऐसा टास्क देना पड़ेगा फिर कि एक्सबॉक्स जीत सके सब। या एक्सबॉक्स कर लेंगे प्रीमियम भाई, करना तो अब पड़ेगा ही अच्छे से तैयारी सारी कुछ। इसके मतलब बारे में उसके क्या कंडीशन टीएनसी रहेंगे हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो यू कैन जस्ट कनेक्ट मी ऑन द लिंक्डइन, एंड वहाँ पे तुम लोग यू कैन जस्ट आस्क मी ओवर देयर इफ एनीथिंग एल्स। ऋषभ, लेट्स रैप अप। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर या साइड? या थैंक यू गाइस फॉर बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Rest we will continue tomorrow. See you all guys tomorrow. But don't forget to fill up the attendance form by 10 p.m. After that, I'll not accept attendance. And to receive your certificates, you will have to be present both days. Then only you will receive certificate. And the terms and conditions for being eligible for getting LinkedIn Premium, we will tell tomorrow itself, not today. Thank you, Pandit. Thank you all. Thank you so much for there. Have a good night. Have a good weekend. We'll meet you tomorrow. All right. Bye bye. Bye bye.